a very important budget, keeping in view so many things, and we have a very little knowledge, and having the WhatsApp knowledge even. So we are confused little bit, what is correct or what is not correct. So I have requested, or as earlier years, Kapil Bhai always give time hour on a very budget day and appraise us on the budget intricacies. So once again, Kapil Bhai with us. I once again welcome Kapil Bhai. I welcome Gopal ji, Rakesh Sir, Khibani ji, Sunil Dhamija ji, Anand Dua ji, Deepak Ostwal ji, and Prashant ji, and all the attendees. That is 246, sir, now attendees. So I welcome all of you, sir, and we would try to understand the what is the intricacies of budget from our Kapil Bhai. And over to Kapil Bhai, sir. थैंक यू राजेश भाई. राधे राधे. बाके बिहारी लाल की जय हो. Since we are joining in this month again, we have already met on the last topic when we discussed rights and duties of taxpayers. It is contextually, आप देखिए, rights and duties we have discussed last, and today we are to discuss the Finance Bill 2024, which is presented today by the Honorable Finance Minister in the Lok Sabha. And firstly, I convey my warm regards to very special panelists and people who are there. गोपाल जी, सबसे पहले गोपाल जी बांके बिहारी के परम भक्त हैं. मेरे प्रति इनका स्नेह बहुत रहा है हमेशा. दुआ साहब जी, खिवानी साहब particularly, and धमिलिया जी, and my other friends including my good friend Manoj Jain ji and everyone who has joined me in this webinar. So I welcome everyone, sir. I first give a caveat, Gopal ji, that see, somebody has rightly said, when you are discussing anything, especially relating to a subject which is ever evolving and we are all correcting ourselves. So it is not like this that I always submit, and I submit with all humility at my command, that if some errors happens in my speech or some, because on the same day, although we try to discuss it, it is a first kind of a discussion. So my viewers and all of you will take it in healthy sense. If some error happens, I will correct myself if you will point me, and please don't take it otherwise. And I'm no authority for anything. I'm just a small, humble student of the law and the subject. And it is an attempt, an endeavor to just discuss and fresh up, Agarwal Sahab, that, and as we were discussing, that there are some changes like search assessment and reassessment, which will have a very deep impact and a very large impact on the ongoing litigation and the subsequent litigation to come. So as Honorable Finance Minister in the budget speech in the direct taxes portion, when she has started, she has given the indications, clear indications, that in the next 6 months, entire Income Tax Act will be comprehensively reviewed. In the next 6 months, the term use is comprehensively reviewed. The Honorable FM has said that in this budget and in this time, they have picked up some areas which are TDS, charitable trust taxation, reassessment, search assessment, and so on. So what have been changed, definitely we will discuss capital gains and TDS and this charitable trust and reassessment and search assessment. Barring that, there will be definitely more changes to come. What changes are not in the finance bill, but what are part of announcements can be taken note of. She has very clearly said in the budget speech, which is very important, Rajesh Bhai, in the times to come, she has said, Honorable FM, that a very detailed standard of operating procedure for TDS defaults and compounding will be issued, announced. And it will be maybe in the form of instructions and the guidelines. So you can note down that TDS SOP and TDS guidelines will be issued in the near future. And definitely some relaxation in compounding should also be done, as she has rationalized the TDS prosecution section 276 capital B, that if you happen to delay deposit the TDS but deposit before filing the statement, then TDS prosecution will not be there. So Rajesh Bhai, she has said that standard operating procedure of TDS defaults and compounding, fresh compounding instructions will be there. And secondly, she has very importantly said, and which is a very positive step, we all congratulate the finance minister for that. She has increased the monetary limit of threshold of filing of appeal by the revenue in the ITAT, High Court and Supreme Court. That limit has been increased in the, I believe, direct taxes also and other taxes also. And now, Rajesh Bhai, from 50 lakh, earlier limit was 50 lakh rupees for the revenue to file appeal to the ITAT against CITPL order. Now it is 60 lakhs. For High Court, it was 1 crore, it is 2 crore. For Supreme Court, it was 2 crore, it is 5 crore. So now, enhanced monetary limit for filing the appeal by the revenue before the ITAT, High Court and Supreme Court is respectively, you can note down, 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore rupees.
So many of the departmental appeals will have to go out due to this enhanced monetary limit, which she has announced, the Honorable Finance Minister, in the budget speech. I believe it will be followed up in some instruction, because that will come in form of instruction, CBT instruction. So Rajesh bhai, this point can be noted down, SOP of TDS. And secondly, enhanced monetary limit for filing of appeal by the Income Tax Department in ITAT and High Court and Supreme. Third, she has said in the budget speech that she will increase number of officers in the first appeal, and government's endeavor is to decrease the litigation pending in various appellate form, especially CAT appeal. Fourth thing, which is very critical and important to note, a Vivad Se Vishwas version 2 has been launched, VSV 2024, for which cutoff date has been kept 22nd July 2024, कि जो मामले 22 जुलाई 2024 को पेंडिंग हैं अपील में आप समझते हैं, CAT अपील, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, SLP में, रिट में या रिवीजन में, उनके लिए आप अगर डिपार्टमेंट की अपील है या SSC की अपील है, जो पहले विवाद से विश्वास आया था, उसी का ये वर्जन 2 है। तो ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास 2024 की स्कीम चैप्टर 4 फाइनेंस बिल 2024 में कंटेन्ड है। इससे भी राजेश भाई लिटिगेशन पे काफी फर्क पड़ेगा। और जो मॉनेटरी लिमिट कम की गई है, वो जो रेवेन्यू की अपील फाइल करने बढ़ाई गई है वो, और ये विवाद से विश्वास लाया गया, इसमें उन्होंने कट ऑफ डेट 22 जुलाई 24 की रखी है। और साथ में ये भी कहा है कि जो मामले, मान लीजिए एक, जैसे पहले वाली जो स्कीम आई थी वो 1 जनवरी 1 फरवरी 20 की डेट में आई थी गोपाल जी, उसके हिसाब से उन्होंने रखा है कि जिसमें आप अपील में 1 फरवरी 20 के बाद गए हैं या आपकी अपील 1 फरवरी 20 से पहले की है। अगर 1 फरवरी 20 से पहले की है तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने, जैसे 100% टैक्स है, 100% अमाउंट है तो 110% देना है। और अगर 1 फरवरी 20 से बाद की राजेश भाई, तो जितना टैक्स है उतना देना, आपका निपटारा हो जाएगा। पेनल्टी के लिए कितना देना है, 25 और 30% कुछ करके है। तो ये स्कीम भी मेरे को लगता है विवाद से विश्वास में लाने का पर्पस भी यही था। पहले भी उन्होंने जो काफी रेवेन्यू मिला, उन्होंने बोला भी है कि अपनी उसमें मेमोरेंडम में कि पहले वाली स्कीम बहुत हिट हुई थी, तो इस बार जो स्कीम लाए हैं 2020 में आई थी, वो 2024 में है, 4 साल बाद। तो इसमें भी मुझे लगता है काफी सारे निपटारे हो सकते हैं, होंगे, और आने वाले टाइम में इस स्कीम को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। चैप्टर 4 में है फाइनेंस बिल 2024 के साथ। उसका मेन मैंने पॉइंट बता दिया, स्पेसिफाइड डेट 22 जुलाई 24, जो मामले 22 जुलाई 24 को पेंडिंग हो गए। और दूसरी बात राजेश भाई, कौन सी अपील 1 फरवरी 20 के बाद की है या 1 फरवरी 20 से 2020 से पहले की है, उसके ऊपर आपका टेबल उन्होंने बनाया, जिसके ऊपर आपको जितना पैसा देना होगा। अगर आप बाद में भी देते हैं खिमानी जी, तो उन्होंने एक ऐसा भी स्लैब रेट भी दिया है, जैसे आप बाद में देंगे तो कुछ बढ़ाकर दे सकते हैं, जैसे 31 दिसंबर 24 तक देते हैं, दिसंबर 24 के बाद देते हैं, तो वो भी उन्होंने विवाद से विश्वास 2024 में कहा है। तो ये आउटलाइन थी कि जहां पर उन्होंने कहा है 6 मंथ्स में कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा। टीडीएस, चैरिटीज, रीअसेसमेंट, सर्च असेसमेंट, कैपिटल गेन्स को हम डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी लिमिट बढ़ा दी गई है, विवाद से विश्वास 2024 अनाउंस हो गया है। अब जो जैसे अगर हम फाइनेंस बिल को पढ़ें, मैं जैसे नोटिंग कर रहा था सर राजेश भाई, कैपिटल गेन के चेंजेस अगर हम लें, सबसे पहले जो कैपिटल गेन हेड से संबंधित है, उसमें बायबैक ऑफ, जो बायबैक होता है, कंपनी शेयर अपने बायबैक करती है, उसको उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 22 में आप नोट कर सकते हैं, पहला चेंज सेक्शन वाइज, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में क्लॉज F इंसर्ट कर दिया है। वो शेयर होल्डर के हाथ में, जिसके शेयर बायबैक होंगे, उसके हाथ में टैक्स होगा, पर 1 अक्टूबर 24 से बाद के लिए उसमें कट ऑफ डाला है 1 अक्टूबर 24 का। 1 अक्टूबर 24 से पहले का बायबैक अलग है, 24 के बाद का अलग। तो गोपाल जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल अच्छा। सेक्शन 2 क्लॉज F। गोपाल जी कह रहे हैं कि 9 महीने से पहले तो बाईबैक भी नहीं हो सकता, प्लानिंग कहाँ से होगी? 2 मेरे बायबैक इन प्रोसेस थे, जल्दी हाँ, करना पड़ेगा, प्रोसेस ही लंबा है। चलिए, सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज F में डिविडेंड की परिभाषा में ई क्लॉज तक था, F ये आ गया सर। 1 अक्टूबर 24 के बाद, 1 अक्टूबर 24 से पहले के लिए वो 115 QA जो सेक्शन था वही लगेगा डिविडेंड, वो जो बायबैक का टैक्सेशन सेक्शन था 115 QA। 1 अक्टूबर 24 के बाद के लिए नई स्कीम है कि जहां शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक टैक्स लगेगा, उसमें जब ये इन शेयर की कंसीडरेशन, जब ये अदर सोर्स में टैक्स होगा ना सर, तो अदर सोर्स में पूरी कंसीडरेशन वैल्यू टैक्स होगी, कोई खर्चा नहीं मिलेगा खिमानी जी। सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज में जब आप इसको बायबैक को टैक्स करेंगे, तो सेक्शन 57 में उन्होंने, आप नोट कर लीजिए, अमेंडमेंट कर दिया अलग से 57 में, अदर सोर्सेज में कोई खर्चा नहीं मिलेगा उसकी कॉस्ट वास्ट। सेक्शन 46A के अंदर अलग से अमेंडमेंट करी है कि जहां लिखा है 46A कैपिटल गेन में कि जो बायबैक होगा उसकी कंसीडरेशन वैल्यू डीम्ड नील हो जाएगी, तो उससे आपका कॉस्ट से लॉस निकल जाएगा, मतलब वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, यहां टैक्स दोगे। आप समझ गए सर? जैसे आपका बायबैक हुआ, नहीं मैं बताता हूँ सर, 1 अक्टूबर 24 के बाद बायबैक हुआ, तो उस बायबैक में आपको सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज F में पहले तो वो डिविडेंड हो गया टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर,
उसकी Correct. टैक्सेशन हो गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 में। करेक्ट। सेक्शन 57 में अमेंडमेंट कर दी गई अलग से कि कोई खर्चा नहीं मिलेगा इसके खिलाफ, मतलब ग्रॉस Okay. वैल्यू टैक्स हो गई। ओके। सेक्शन 46 कैपिटल है, जो कैपिटल गेन हेड का सेक्शन है, उसमें लिख दिया कि ये जो बायबैक होगा जिसकी कंसिडरेशन अदरवाइज अदर सोर्स में टैक्स हो रही है ग्रॉस अमाउंट, वो वहां कंसिडरेशन निल हो जाएगी, निल, क्योंकि आप वहां टैक्स ले चुके। तो उसकी वजह से जो आपका पुराना कॉस्ट होगा उससे आपका क्या निकलेगा, एक लॉस निकल जाएगा। उस लॉस ओके। को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाकर आप कभी बेचेंगे, आपको भाग्य से गेन होगा तो सेट ऑफ कर लेंगे, अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा जब आपका बायबैक हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। ओके। मल्टीपल मल्टीपल अरे नहीं नहीं सर, आज टैक्स पूरी अमाउंट पे हो गया, आपने ये नहीं पकड़ा। आपको मतलब लॉस जो अराइज होगा उसकी कॉस्ट का, वो उस समय नहीं मिलेगा, वो आपको बाद में कभी आप जब लक्की होंगे आपको गेन होगा तब मिलेगा। ये मेमोरेंडम में उन्होंने एग्जांपल देकर समझाया हुआ है कि जैसे आज आपका कोई बायबैक होता है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगी। जो हाँ। जो आपका लॉस Cost है। निकलेगा, कॉस्ट की वजह से नोशनल लॉस निकलेगा, आप कह लीजिए, वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में, जब आपको कभी गेन होगा तो आप सेट ऑफ कर पाएंगे। हाँ। पता चले किसी को गेन होगा ही नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, फिर उसको तो लग गया टैक्स। तो इसका फिलॉसफी मुझे ये समझ में आया कि आज आपसे टैक्स ले लिया बायबैक पे, हाँ। करेक्ट। आपको लॉस का जो, राजेश भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीरियस, कि जो Interesting कॉस्ट है है। वो आपकी डेफर हो गई लॉस। और नोशनल इनकम पर टैक्स ले रहे हैं आप, हाँ डेफिनेटली सर, और आज प्रीपोन करके, टीपोन करके। जैसे आपने प्रीपोन आज करके। ग्रॉस वैल्यू पे मुझे टैक्स कर दिया, ये एग्जांपल में लिखा है उन्होंने बकायदा सर, जो मेमोरेंडम है उसमें एग्जांपल भी दिया एक मैथमेटिकल। तो और मुझे उसके ऊपर इंडेक्सेशन। नहीं नहीं नहीं, वो जो बात मुझे अचरज लगी कि जैसे आपने आज मुझे बायबैक टैक्स कर दिया ग्रॉस अमाउंट अदर सोर्स में, मेरा कैपिटल लॉस जो था खिवानी जी, जो मेरी कॉस्ट पड़ी हुई थी मेरे हैंड्स में, वो आप मुझे आज अलाउ नहीं कर रहे, वो सेट ऑफ, वो आप मुझे बाद में अलाउ करोगे। ट्रू। तो दिस इज टिपिकल सर, यू कैन नोट डाउन द सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज एफ में उन्होंने एफ क्लॉज डाल दिया है। सेक्शन 46 कैपिटल ए में उसकी कंसीडरेशन वैल्यू निल ले लिया, तभी वो कॉस्ट लॉस निकलेगा गोपाल जी, तभी वो फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 57 में इन्होंने लिख दिया है कि कोई खर्चा नहीं मिलेगा आपको बायबैक की उस पे टैक्स, उसके खिलाफ 115 क्यू ए सेक्शन में लिख दिया है कि जो पुरानी प्रणाली थी वो उसका सनसेट क्लॉज डाल दिया कि 1 अक्टूबर 24 के बाद ये नया बायबैक टैक्सेशन रिजीम चलेगा। तो ये एक बायबैक का प्रोविजंस थे। दूसरा इसका सेट ऑफ प्रोविजन जो बहुत सीरियस चेंज है वो ये है कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे। ये चेंज समझ में आ गया खिवानी जी, बायबैक वाला ना, आगे बढ़ू ना। यस यस। सो इसका डेट ऑफ कट ऑफ डेट भी नोट कर लीजिए 1 अक्टूबर 24। अब First दूसरा October. चेंज जो है सर, ये जो चेंज है बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 से रिलेटेड सर, जो मतलब ये जो सारा अब इन्होंने ये कहा है कि हम किसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, किसके अंदर हमारे लिए मान लीजिए कितना महीने के लिए उसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर कितने महीने होल्ड करना होगा, और दूसरा उसका रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। ये पूरा जो कैपिटल गेन रिजीम है उन्होंने उसको ओवरऑल कर दिया है मेरे हिसाब से। और सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर उन्होंने उसको सिंप्लीफाई मैनर में अगर मैं समझाना चाहूं आपको तो ऐसे है सर, आप सिर्फ 2 ही चीजें चलेंगी, 12 महीने और 24 महीने। 24 महीने। अब 12 महीने तो उसके लिए लिस्टेड एसेट के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, 24 महीने अदर एसेट्स के लिए। तो 12 और 24 उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि 12 प्लस 24, इफ यू कैन नोट दिस चेंज हैज बीन डन इन सेक्शन 2 क्लॉज 42 में क्रॉस साथ खुद भी उसको दोबारा चेक करता जा रहा हूं, क्रॉस सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए में। और उसके साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अभी अभी आगे आपका जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा सेक्शन 111 कैपिटल ए में और 112 में, उसको भी चेंज कर दिया है। अब वो समझने वाली बात ये है खिवानी जी कि अगर आपका कोई लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसका टैक्स रेट आज 15% है, वो 20% होगा। लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111 ए में राजेश भाई 15% से 20%। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट चेंज हुआ है वो सिर्फ फाइनेंशियल लिस्टेड एसेट्स के लिए चेंज हुआ है। अदर देन लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम रहेगा। एम आई देयर सर? कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है 15 से जो 20% किया गया है वो सिर्फ लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए है। ओके, whether STD paid or not. यस यस, नहीं उसमें ये नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो तो शॉर्ट टर्म होगा वो तो अदर इनकम में आ ही जाएगा।
हाँ नहीं अब मैं पढ़ के बताता हूँ सर, इसी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन financial assets will hence certain financial asset will henceforth attract a tax rate of 20%, while that on the other all other financial assets and non financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. तो वो 111 का जो 15% था उसको 20% कर दिया अमाउंट उन्होंने, ठीक है, और जो 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो सबके लिए चेंज हो गया, वो 12.5% हो गया रेट अप स्टैंडर्ड, और इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा उसका। सेक्शन 48 में बहुत सीरियस चेंज है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, अब सिर्फ 12.5% आपको टैक्स, मतलब 12.5% टैक्स रेट सीधा है और कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। मगर वैल्यू कब की लेंगे? वैल्यू तो वो चीजें अनचेंज्ड है। उन्होंने आपसे सेक्शन 48 के अंदर वो जो डेट डाल दी जुलाई वाली, वो कट ऑफ डेट डाल के उन्होंने कह दिया कि इंडेक्सेशन नहीं होगा नई रिजीम में, और 12.5% कैपिटल गेन पे टैक्स रेट होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदी 1970 में, तो 2001 की वैल्यू लेंगे, 70 की लेंगे? नहीं वो तो 2001 की वैल्यू है सेक्शन। अगर आज आप बेच रहे हैं और आपके पास तो आज की तारीख में तो हिमानी जी लॉ में बिल्कुल सेक्शन 55 में 1/4/2001 का जो नियम है वो एज इट इज है, उसका चेंज नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ इंडेक्सेशन हटाया है ना? दो चेंज हुए सर, एक तो मैं जो पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 42A में, 424 मंथ्स हो गई। लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन ए ईयर विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, व्हाइल अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स विल हैव टू बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो उन्होंने 12 और 24 महीने कर दिया कि लिस्टेड वाले के लिए 12 महीने और बाकी सबके लिए 24 महीने, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग वाला हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 42A हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा हो गई। अब जो दूसरा चेंज है वो रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 111 और 112 है, जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट था 15%, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, 20 कर दिया। Am I there? और जो लॉन्ग टर्म वो ऊपर उसके लिए बढ़ा है सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, बाकी सब के लिए। हाँ, नॉट फॉर दिस, यस करेक्ट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 12.5% रेट है वो सबके लिए है, करेक्ट। वो नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड सब हो गया, सिंगल रेट एप्लीकेबल हो गया फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ ये सिंप्लीफिकेशन है। और 23 जुलाई से है कपिल जी, इसमें जो आपका वापस ले लिया बहुत बड़ा बेनिफिट, इंडेक्सेशन आपसे ले लिया। हाँ बोलिए ट्रांजेक्शन 23 जुलाई ऑनवर्ड्स है कपिल जी, इसमें 23 जुलाई से है ये। हाँ ये देखो नहीं क्या है, ये सस्पेंड ईयर, आई विल टेल यू सर, इसमें क्या सस्पेंड ईयर 25-26 से है शायद। नहीं हाँ नहीं सिर्फ 23 जुलाई से ही है ये चेंज, इन्होंने, आपने सही बोला था गोपाल जी, 23 आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। इन क्लॉज 242A में विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई हो गया, और यहाँ सेक्शन फ्रॉम द डे 1। हाँ, और जहां सेक्शन 48 में भी आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा एक्ट खोल के, क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर वही। और ये देखो इन्होंने 23 जुलाई यहाँ पर सेक्शन 48 में जो इंडेक्सेशन को फ्रीज किया, कट ऑफ किया, वो भी 23 जुलाई लिख दिया। फिर आप 111A पे आओ, नीचे 111A पे आओगे आप, तो वहां पर भी आपको यही बात मिलेगी कि दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 22। आर यू विद मी सर? यस यस। जो 23 जुलाई से पहले हो गया, मतलब जो कल तक हो गया उनका भाग्य निमित्त हो गया, और जो कल आज इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं कपिल भाई, मिलेगा यहाँ अभी। एक कपिल भाई एक प्रॉब्लम आएगी। क्या? उनके मान लो एग्रीमेंट टू सेल हुए हैं, रजिस्ट्री कल होनी है, उनका क्या होगा? आप तो सारे लिटिगेशन के पॉइंट आज ही डिस्कस कराना आज चाहते ही हो। पूछ लोगे। नहीं मैं उत्तर दे दूंगा, पर मेरे उत्तर देने से बनेगा क्या राजेश भाई? ठीक है, बजट तक ही रखते हैं और आज। मेरी बात की वैल्यू क्या होगी? सर बजट ही रखते हैं आज, बजट ही रखते हैं आज। आपका क्वेश्चन जेन्युइन है कि कपिल भाई, इसमें जब इतना आपने वो उसको खींच दिया है कि 23 जुलाई डाल दिया, जो बात गोपाल जी ने बोली थी वो बड़ी क्लासिकल बात थी। मतलब आपको देखो, आपने आज से डाल दिया, आज बजट पेश किया आपने, आज का डेट डाल दिया कैपिटल गेन में। इसका मतलब गवर्नमेंट ये बिलीव कर, मतलब सॉरी कि इसका मतलब उल्टा देखो मेरी तरीके से, मैं हो सकता है गलत सेंस से देख रहा हूं राजेश भाई, कि इसका मतलब हमें पता होना चाहिए था कि आज से ये चेंज होने वाला है। नहीं कपिल जी, 33 साल में कभी नहीं देखा प्रैक्टिस में ये चीज तो मैंने। नहीं अब इसका मतलब यही हुआ ना गोपाल जी कि मुझे आपको, हमें भविष्य का ठाकुर जी से शक्ति मिलनी चाहिए थी, करदाता को, कि भविष्य जैसे संजय को शक्ति थी, संजय जी को महाभारत में, कि हमें आगे क्या होने वाला है। यस यस। क्योंकि कल कपिल भाई एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, और मैं तो कहता हूँ प्रेजेंट प्रेसिडेंट चोपड़ा जी ने हमको ज्वाइन किया है। सर वेलकम, सर वेलकम चोपड़ा सर। सर प्रणाम सर, आप म्यूटेड हो सर, आप चोपड़ा जी म्यूटेड हो सर, आप म्यूटेड हो, अनम्यूट करो सर। दर्शन भी करवा दो। हाँ दर्शन तो हो गए सर, सुने सर। हाँ जी, नहीं थैंक यू वेरी मच राजेश जी। मैंने सोचा कि कपिल जी को सुन लें, मतलब कि इतनी चेंजेस, और ये चेंजेस तब जबकि आप ये कह रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर कि 6 महीने में हम नया डायरेक्ट
टैक्स कोड ला रहे हैं। अपने को तो समझ नहीं आती किस तरीके की विजडम है सरकार की, किस तरीके की विजडम है एफएम की। सर आपको आप नहीं अनाउंस आती? कर रहे हो कि 6 महीने के अंदर हम सब नहीं, कुछ सर आपको बदलेंगे। नहीं आती तो हम तो आप ही के छात्र हैं चोपड़ा साहब, मैं तो आप ही का छात्र हूँ। जब आपको नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती बिल्कुल भी सर। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप कह रहे हो 6 महीने में हम नया डायरेक्ट कोर्स लाएंगे, और अगला बजट भी आपका 8-9 महीने दूर है, सिर्फ इससे ज्यादा दूर नहीं है। और आप ये सारी की सारी चेंजेस इन द मिड ऑफ द ईयर ला रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग। और सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हो आप बेसिकली। आप बाई बैक वाले को देखो, आपने क्या किया बाई बैक को, कि बाई बैक आपका रेसिपिएंट के हैंड में टैक्स होगा, पर जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप लॉस क्लेम करोगे। सॉरी मैं लास्ट नो, कर दूं जरा। हाँ। व्हाट काइंड ऑफ ए प्रोविजन इज दिस यार? सर ये प्रोविजन पता है क्या है? मैं अपने आप जैसे बोल रहे हैं, आप तो बड़े हैं और आपने मेरे को बड़ी खुशी हुई, आपने इसको पकड़ भी लिया, दोनों बातों को, सिंप्लीफिकेशन को भी और उसको भी। और ये क्या है चोपड़ा साहब, मेरी कम बुद्धि क्या कहती है, लिटिल सेंस सर, कि ये इस तरीके के प्रोविजन जब आप बनाते हैं कि आप रेवेन्यू माइंड ये रखते हैं कि आज हमें गेन टैक्स तो मिल जाए, एसएससी को भाड़ में जाए, कॉस्ट हम बाद में देंगे, पता नहीं वो मिलेगी भी नहीं मिलेगी। बहुत, ये इंडेक्सेशन वाला भी क्या है? इंडेक्सेशन वाला यही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है कि आप ज्यादा टैक्स दे दो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। अगर आपने मकान ले लिया तो ठीक है, नहीं तो पूरे का पूरा पैसा आप कहाँ लगाओगे? बॉन्ड्स में लगाओगे, जाएगा सरकार के पास राइट सर। बिना कॉस्ट के, बेनिफिट के। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ हम ये कह रहे हैं इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए टैक्स पेयर को, यहाँ पे उल्टा चल रहा पूरे का पूरा। इट इज गोइंग द रिवर्स वे राउंड। नहीं, एक चीज इसमें जैसे चोपड़ा साहब इन्होंने गोपाल जी ने पूछी थी ना, आपका क्या सर, जैसे इसमें आज इन्होंने जैसे इस वाले कैपिटल गेन के लिए इन्होंने कट ऑफ डेट सर अभी कल आज ही रख दी, आज 23 जुलाई रख दी। तो मेरे कर ही नहीं सकते क्योंकि जब पास होगा पार्लियामेंट में उसके बाद तो एनफोर्स करोगे यार। या इसका मतलब आप पास की डेट से पहले रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, इफेक्ट दे रहे हो। इसमें मेरा क्वेश्चन एक आगे है सर, और सॉरी अपने आपसे भी, आपसे भी, कि अगर मान लीजिए मैं 23 जुलाई 24 के बीच में, और जब तक ये फाइनेंस एक्ट नहीं बनता उसके बीच में मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, ये वाली कैपिटल गेन वाली, तो भी फंस गए, हाँ, तो तो भी फंस गए। ये तो बड़ा इसका मतलब मुझे उस ट्रांजेक्शन के अंदर भी जो इंटरगिनम में मैं करूंगा 23 जुलाई से लेकर फाइनेंस एक्ट 2024 नया बनने तक, उसके बीच में भी जो होगा वो भी इसके हिसाब से टैक्स होगा। हमें बिल्कुल इसके हिसाब से टैक्स होगा। बट दैट्स आप वेरी इमेजिन करें, एक ही फाइनेंशियल ईयर है, एक ने 23 जुलाई से पहले बेच दिया, हाँ। एक 23 जुलाई के बाद बेचेगा। वो 23 जुलाई से पहले जिसने बेच दिया उसको खबर होगी सरकार की, तो वो फायदे में हो गया। जो दूसरे गरीब आदमी एग्रीमेंट टू सेल किए बैठे हैं वो फंस गए। सर आपने मेरी सारी बातों को अप्रूव कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी मेरी बात पे। नहीं, ये नहीं है बॉस। मुझे तो एम्प्लॉयमेंट वाला भी समझ नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हो कि आप मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, हाँ जी। पर उसकी जो सैलरी देगा वो कौन देगा? वो कंपनी देगी, मान लिया। उसमें आप क्या बेनिफिट दोगे? 1 महीने की सैलरी दोगे आप। अरे वो लाला जो है ना, लाला उसको पहले 6,000 रुपया करके देगा। उतना लाला भी कोई इतना आसान थोड़ी ना, मतलब कि लाला को आप पकड़ दोगे। वो कहेगा बेटा तुझे ये बेनिफिट होने वाला, सैलरी इतनी कम ले ले मेरे से। फिर आपने कहा इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप आपने, हम ये सोच रहे थे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई होगी, पैसा अलग से रखा होगा। आप कह रहे हो 5,000 रुपया वो देगा, कंपनी देगी, और वो 10% CSR का यूज कर ले। यार क्या गजब स्कीम है। कोई कहीं तो यार मतलब कि आप, पर आप बिहार को पैसा दोगे, आप अमरावती को पैसा दोगे आंध्र प्रदेश में कि कैपिटल बनाओ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदारों ने वहां प्लॉट खरीदे हुए हैं बेसिकली। वहां पे आप पैसा दोगे, बिहार में आप पैसा दोगे। राइट सर। Anyway, it defies logic by all means, And basically. this change of capital gain with immediate effect is something very typical, sir. Very, very typical. मतलब मेरे ख्याल में अगर कोई कोर्ट जाएगा, मेरे ख्याल में if somebody goes to the court, they will be able to get the relief. मेरा ओपिनियन जी अपने मुंह से एक बात और बोल रहा था सर अपनी बात से, कि जैसे क्या है खिवानी जी की, जैसे ये जो चेंज बायबैक टैक्स का हुआ है, वैसे तो अभी प्री मैच्योर है बात, पर जैसे चोपड़ा साहब ने भी इसको विंडिकेट किया है, आप अगर कोई चीज को नोशनली इतना टैक्स कर दें और उसकी कॉस्ट को हटा दें, या जैसे आज 23 जुलाई का आर्बिट्रेरी फिल्टर डाल दें, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपने आप में बहुत सस्पेक्टेबल है। कल को कोई आदमी आर्टिकल 14 के हिसाब से, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस के हिसाब से इसको चैलेंज करेगा, तो कोर्ट को इस पे जजमेंट
देना पड़ेगा। हो सकता है वो फिर भी अप्रूव कर देगी जो गवर्नमेंट ने किया है सही है, बट एक बार एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा कि क्या ये जो आपने आर्टिफिशियल सीलिंग लगाई है 23 जुलाई 24 की जिस तरीके से, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, दिस क्वेश्चन मार्क विल रिमेन देयर। एनी हाउ सर, आई प्रोग्रेस फर्दर। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रोसीड सॉरी कीजिए सर, जरा। सॉरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 42A चेंज हो गया सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वाला जो पीरियड ऑफ होल्डिंग वाली बात थी। सेक्शन 23 जुलाई 24 वो ध्यान रखना है, इमीडिएट इफेक्ट है सभी। सेक्शन 48 जिसमें उन्होंने इंडेक्सेशन आपसे वापस ले लिया गोपाल जी, सेक्शन 111 है और 112 है। यस यस ये सब अभी- इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से किया है कैपिटल गेन वाला। यस कैपिटल गेन पे एक सवाल और भी उठता है हाँ जी। कि देर मेड अ प्रोविजन कि अगर 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन है तो 2 मकान ले सकते हो। हम्म अब वो इंडेक्सिंग करके कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे आ रहा है हम्म। और विदाउट इंडेक्सिंग करके कैपिटल गेन ज्यादा आ रहा फिर है। ये सब बातें तो मतलब इंटरप्ले जो बाद में फिर वही बात हो गई जैसे जो राजेश भाई पूछ रहे थे, ये लिटिगेशन वाला हमारा सवाल हो गया। दूसरा वाला सवाल कि इसका ठीक है। इंटरप्ले कैसे होगा कि गोल साहब अगर 48 में आपने प्रोवाइजो का इंडेक्सेशन हटा दिया वहां से, तो जब आप 54 में जाओगे तो उसका इंटरप्ले कैसे करोगे? मैं देखो सर, वहां तो कैपिटल गेन के एग्जाम्पशन की बात होती है, वहां आपको कैपिटल गेन एग्जाम्प लेना है, तो वहां की जो कैलकुलेशन होगी वो तो जो कैपिटल गेन आएगा आपको इन्वेस्ट करना है 54 के लिए, 54 में आपको कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी है, तो आपको उस हिसाब से चलना है खिवानी जी, सिंपल है। ठीक, चलिए प्रोसीड। सेक्शन 50AA आप नोट कर लीजिए सर, 50AA में उन्होंने अनलिस्टेड डिबेंचर वगैरह को डाल दिया है कि उस पे जो टैक्स रेट होगा नॉर्मल तरीके से लगेगा 50AA में अनलिस्टेड डिबेंचर पे। तो ये उन्होंने इस बार बजट में इंक्लूड कर लिया है, इस वाले बजट से, फाइनेंस बिल 24 से। और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है कैपिटल गेन के अंदर, इसी में ही जो पूरी श्रृंखला हम डिस्कस कर रहे हैं, 47 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शन 47 क्लॉज 3 ये कहता था खिवानी जी कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है किसी को कोई कैपिटल एसेट और गिफ्ट विल और उसमें कर रहा है, गिफ्ट में, विल में या इरेगुलर, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि कंपनी नहीं कर सकती, फर्म नहीं कर सकती। तो अब इन्होंने क्या डाल दिया कि उसमें 47 क्लॉज 3 में जिसमें ट्रांसफर उसको ट्रांसफर नहीं मानते थे, उसमें लिख दिया एचयूएफ और इंडिविजुअली अगर इंडिविजुअल उससे गिफ्ट और उससे करेगा विल से या उससे गिफ्ट से देगा तो होगा। अगर कॉर्पोरेट कोई गिफ्ट करेगा तो 47 क्लॉज 3 की उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। Am I there? सेक्शन 47 क्लॉज 3 जो इम्यूनाइज ट्रांसफर है उसमें ये लिख दिया उन्होंने इंडिविजुअल और ट्रांसफर के द्वारा किया हुआ। Am I there सर? यस, रिसेंटली केस लॉ आया था इसके ऊपर। हाँ नहीं, उन्होंने दिया है लिटिगेशन, पर ये चेंज वैसे तो प्रोस्पेक्टिव है, डिपार्टमेंट फिर अपनी तरीके से वही बात करेगा चोपड़ा जी की, जैसे क्या होता है ये कहते तो हैं कि हम तो कोई चेंज रेट्रोस्पेक्टिव लाएंगे नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ा सर वो होता है डायबोलिटिकल एटीट्यूड, आई एम सॉरी डाइग्रेसिंग, कि जब ये चेंजेस लाते हैं ना और उसमें लिख देते हैं मेमोरेंडम में कि पुराना लिटिगेशन मुद्दा चल रहा था गोपाल जी और कोर्ट्स में ये बात चल रही थी और लाए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो उसमें ये भी डिपार्टमेंट का स्टैंड होता है कि ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिव है। जो खुद गवर्नमेंट ने नहीं बोला है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, वो जो कोर्ट्स में डीआर या स्टैंडिंग काउंसिल खड़े होते हैं गवर्नमेंट के लिए जो पुरानी लिटिगेशन चल रही है उसमें क्लैरिफिकेटरी है। हाँ ये बड़ा बड़ा मुझे हमेशा ही एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए लेमैन लगता है कि आप यहाँ तो बोलते नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, वहां जाकर आप जब इसकी इंटरप्रिटेशन कराने लगते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर तो बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव है, तो वो गलत है। एनी हाउस 47 क्लॉज 3 का चेंज है सर। कैपिटल गेन का पैकेज कंप्लीट हो गया, बायबैक टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट और 50AA में अनलिस्टेड डिबेंचर इंक्लूडेड और ये 47 क्लॉज 3 के अंदर ट्रांसफर। अगला चैरिटीज है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट का उनका मानना है कि 1023 कैपिटल सी के अंदर 1 अक्टूबर 24 के बाद से एप्लीकेशन नहीं होंगी। आपको 1023C वालों को चाहते हैं वो सब मर्ज होकर 12AA में आ जाए, मतलब 12AA वाला सेक्शन 11 से जो सेक्शन 13 है उसी में सारे लोग आ जाएं। 1023 कैपिटल सी को वो कर रहे हैं, क्या नाम, शिफ्ट कर रहे हैं 12AA की तरफ। तो उन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से कोई एप्लीकेशन 1023 कैपिटल सी सेक्शन में कंसीडर नहीं होगी। नहीं, जो पुरानी है, जिनको पुराना मिला हुआ है 1023C, वो खिवानी जी जब तक वैलिड है पीरियड उनको मिलेगा, और अगर कोई पुरानी एप्लीकेशन फाइल्ड है वो आज के लॉ के हिसाब से जो पहले का लॉ है उसके हिसाब से डिसाइड होंगी। बट जो नई एप्लीकेशन है वो 1023 कैपिटल सी में उन्होंने सनसेट डाल दिया 1 अक्टूबर 24 का। वो लोग जो 1023C से बाहर हो जाएंगे ग्रेजुअली वो 12AA में आकर अपनी शरण ले सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो 4 बातें निकली। 1023 कैपिटल सी को 1 अक्टूबर 24 के बाद नया एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्टेबल है। जो पुरानी एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं उनको जो भी अथॉरिटी है वो पुराने लॉ के हिसाब से डिस्पोज करेंगी। तीसरी बात कि जो जिनको पहले अप्रूवल मिल चुका है खिमानी जी और अप्रूवल एग्जिस्टेंस में, पीरियड खत्म नहीं हुआ अप्रूवल का, वो चलता रहेगा जब तक, फिर जब वर्मा जी वगैरह जी उनका खत्म हो जाएगा वो 12AA में आ सकते। तो दिस इज द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग ऑफ द 1023C रिजीम टू 12AA रिजीम, कि एक ही रिजीम रहे, ये इनका पर्पस है।
तो सनसेट क्लॉज डाल दिया एक तरह से। सनसेट क्लॉज डाल दिया और उसको यहाँ डाल रहे हैं। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी है कमिश्नर को जो नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सीरियस इंप्लीकेशन आ रहे थे कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को उन्होंने, आप नोट कर सकते हैं, सेक्शन 12A में चेंज है, सेक्शन 12 कैपिटल ए में, कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट प्रिस्क्राइब टाइम के बाद एप्लीकेशन फाइल करती है, जो उनको करना चाहिए जिस टाइम में 12A में, तो उसको सीआईटी को एक पावर दे दी है कि वो उस डिले को कंडोन कर सकता है अगर रीजनेबल कॉज है तो। अगर वो डिले कंडोन नहीं होती तो उस पर एक्रेडिटेड टैक्स बहुत कुछ लग जाता था। तो अभी डिले का पावर कंडोन करने का देना, ये अच्छा चेंज है 12A वाला, कि सीआईटी को उन्होंने एप्लीकेशन अगर डिलेड फाइल है उसमें कोई आउटर लिमिट नहीं, उसमें आपको रीजनेबल कॉज बताना है बस। अगला चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है सर चोपड़ा साहब, ये बड़ा मैंने पहले से बहुत सारा बार देखा सर कि बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं सर हम मर्जर करना चाहते हैं ट्रस्ट का। इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था जो मर्जर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो समानांतर ऑब्जेक्ट है जिनके जो सेम काम कर रहे हैं, उनको अलाउ करता हो। तो एक सेक्शन डाला गया है, आप सब नोट कर सकते हैं, 12AC, सेक्शन 12 कैपिटल AC, जिसमें लिखा है कि अगर दो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं सर जिनके ऑब्जेक्ट सेम या सिमिलर हैं और जिसमें मर्ज हो रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो वो अगर मर्ज होता है और प्रेस्क्राइब कंडीशन पूरी करता है तो चैप्टर 12EB जिसमें एक्रेडिटेड टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा और वो मर्जर टैक्स न्यूट्रल रहेगा चैरिटेबल ट्रस्ट का। दैट इज सेक्शन 12AC। तो दिस इज ए वेलकम चेंज। मतलब जहां पर दो चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके सेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं और वो मर्ज करना चाहते हैं, ये 12AC प्रोविजन पॉजिटिव प्रोविजन है। जैसे कॉन्डोनेशन डिले वाला पॉजिटिव था 12A वाला, ये भी 12AC वाला भी पॉजिटिव चेंज। कैपिटल गेन वाले चेंज पॉजिटिव नहीं थे, वो हमने डिस्कस कर लिया बहुत ज्यादा उनके अंदर बिटर इफेक्ट था। अब आती है बात सर कि जो टीडीएस के चेंजेस हैं, मैं सबसे लास्ट में लूंगा गोपाल जी, सर्च वाले और रीअसेसमेंट वाले, क्योंकि वो तो फिर मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले कैपिटल गेन, चैरिटेबल ट्रस्ट। अब आइए इससे पहले ले लेते हैं बिजनेस हेड। बिजनेस हेड में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है ये भी चोपड़ा साहब हमारा बड़ा पुराना लीगेसी इश्यू रहा है कि लोग बाग कई बार जिनका काम प्रॉपर्टियों को रेंट देने का है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज को भी, उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी या बिजनेस हेड में टैक्स होगी। तो कोर्ट्स कहती थी कि डिपेंड करेगा कि एसएससी का नेचर उसको ट्रेडर की तरह काम करने का, इन्वेस्टमेंट की तरह। अगर इन्वेस्टमेंट की तरह है तो हाउस प्रॉपर्टी और ट्रेडर की तरह है तो बिजनेस इनकम। तो अब इन्होंने क्या डाल दिया सर, सेक्शन 28 में चेंज किया है, एक एक्सप्लेनेशन नंबर 3 डालिए सेक्शन 28 में, जो लिखा है कि कोई भी रेजिडेंशियल हाउस की लेटिंग की इनकम का क्लासिफिकेशन बिजनेस हेड में नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में होगा। आई रिपीट, रेजिडेंशियल हाउस की लेटिंग का जो इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा, बिजनेस इनकम में नहीं होगा। ये चेंज कहां करा है उन्होंने, सेक्शन 28 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाली है जिसका एक्सप्लेनेशन नंबर है 3। Commercial use by the part. हाँ जी, Even if the property is being used commercially. ये मुझे नहीं पता सर, मैं ये भी फिर क्वेश्चन उसी में डाल लो आप बॉक्स में, वो जो किट्टी बना लो हुंडी, कि ये कि आप पूछ रहे हो कि गोयल साहब प्रॉपर्टी का नेचर तो वैसे तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रेजिडेंशियल है पर यूज कमर्शियल हो रही है, Correct. तो आप उसको यहाँ कैसे डालोगे? 54F में भी लिटिगेशन रही है, कुछ कोर्ट कुछ कहती है, कुछ कोर्ट कुछ कहती है। लिटिगेशन तो चलनी चाहिए ना। कपिल भाई, कपिल, बॉम्बे गेस्ट हाउस में कोर्ट ने यही कहा था कि द ओरिजिनल नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी विल नॉट बी ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ द यूज। पूरी साहब आपको पता है, आपका स्वागत है पहले तो सर, इसमें एक दूसरा राधे राधे सर, राधे 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 राधे। मैं आपको इसको दूसरा भाव भी बता रहा हूँ, वो बात आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है आपकी जगह। 54F में कई जगह जैसे ये बात हुई, जैसे 54F में लिखा है कि आपके पास जिस दिन आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हो उस दिन आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पर भी जो फ्रेज यूज है रेजिडेंशियल हाउस है, ये जो अमेंडमेंट करी गई है यहाँ पर भी फ्रेज यूज है रेजिडेंशियल हाउस। तो एक कोर्ट ने क्या व्यू लिया सर कि वो जो एक वाली कंडीशन है ना, अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल हाउस वो यूज कमर्शियल के लिए हो रही है तो वो एक वाला क्राइटेरिया में नहीं आएगी, ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो मैं आपको कहां बोल रहा हूं कि अभी मैं इसलिए मैंने इनको खिवानी जी को रोक दिया था कि there is a cleavage of judicial opinion on this. Some high court say something, some high court say something, because the interpretation of the word residential house is subject matter of debate. Whether you say it by just by nomenclature and label, or whether you see it by ground level utilization. So I leave it at that, because this is a litigation point of view. The change is this कि they want the rental. उनका कहना ये मेमोरेंडम में कि हम ये चाहते हैं कि ये सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स हो और लोग बाग बिजनेस इनकम कम कर देते हैं, इसलिए हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जा रहे हैं। तो अब ठीक है, पर्पस इज टू मोबिलाइज द रेवेन्यू, पर्पस इज टू एक्सपेंड द टैक्स बेस, पर्पस इज टू गेट अवॉइडेंस वाला स्कोप खत्म कर दिया हम लोग। राइट सर, दिस इज द राइट। या दूसरा चेंज सर इसमें ये है सेक्शन 36 क्लॉज 1 क्लॉज 5A में।
3615A में खिवानी जी वो कह रहे हैं कि जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना अदर एम्प्लॉयर्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में, वो 10% से उसको बढ़ाकर 14% कर दिया। वो मैडम ने बजट स्पीच में भी बोला था कि जो आप 10% सैलरी का कर सकते थे 3615A में, उसको बढ़ाकर 14% कर दिया। सेक्शन 37 के अंदर अगर आप कोई बाहर किसी कंट्री में कोई किसी लॉ के वायलेशन का सेटलमेंट करते हैं और उसका खर्चा इंडियन बिजनेस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में क्लेम करते हैं, सेक्शन 37 में एक संशोधन किया गया है, उसमें ये कह रहे हैं कि दैट आपका कोई बाहर का कंट्री में सेटलमेंट हो रहा है और उसका खर्चा आप इंडियन पीएनएल अकाउंट में क्लेम कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगा। आप हंस रहे हैं बात कि तो ठीक है सर, अगर इंडिया में उसकी पेनल्टी उसकी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, उसकी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। आप उसको भावना समझिए, उसका भावना पूरी जी है कि वो कह रहे सेटलमेंट कॉन्ट्रावेंशन के लिए कर रहा है बंदा, इसका सही उद्देश्य नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। सेक्शन 40 स्मॉल बी का चेंज पार्टनरशिप पुराने जमाने का, चोपड़ा साहब आपके जमाने में इन्होंने करी होगी कभी, बहुत पहले सर हमारे, मतलब ये तो बड़े बड़े पुराने से चल रही थी कि जो लिमिट थी 3 लाख और 1.5 लाख, जो 3 लाख स्टार्टिंग पॉइंट था उसको 6 कर दिया इस साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को, और इस साइड वाले 1.5 लाख को 3 लाख कर दिया। तो जो 6 लाख का तक का वो उन्होंने जहां 3 था उसको 6 बना दिया और 1.5 को 3 बना दिया। तो आप एनहांस रेम्यूनरेशन दे सकते हो, मुद्दे की बात ये सेक्शन 40 क्लॉज बी क्लॉज 5 में सर। तो दे हैव इंक्रीज 3 लाख जो कैप थी, जो पहले वाला स्लैब था उसको 3 को 6 कर दिया, और जहां 1.5 लाख का तक का रेम्यूनरेशन दे सकते थे सामने उसको 3 कर दिया। तो उनका पर्पस ये था कि लिमिट बहुत पहले फिक्स हुई थी, हमने इस लिमिट को चेंज करना था, उन्होंने कर दिया अच्छे से। एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, बहुत सारी कंपनीज को चाहते हैं, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आए और डोमेस्टिक क्रूज का काम करें और लोगों को डोमेस्टिक क्रूज पे घुमाएं। तो उसके लिए एक सेक्शन डाला है उन्होंने 44BC, उन्होंने मैडम ने कहा भी है कि दैट इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रूज के सेक्टर में फॉरेन शिपिंग कंपनीज आए, उनको एक स्पेशल टैक्स सेक्शन दिया है 44BC सेक्शन 44BC, जिसमें उनकी प्रिजम्पटिव इनकम 20% की दर से टैक्स होगी। सर इसका आइडिया ये है चोपड़ा साहब कि जो बाहर की इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज है, नॉन रेजिडेंट्स फॉरेन कंपनीज, वो इंडिया के अंदर आकर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रूज की सर्विसेज को बढ़ावा दें, उसके लिए उनको एनकरेजमेंट दिए। सेक्शन 44BC में प्रिजम्पटिव स्कीम डाला है, साथ में उनकी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट भी करी है अलग से, वो अलग चीज है, वो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, बट मेन बात ये है कि डोमेस्टिक क्रूज, बट ये रेजिडेंट कंपनीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए है। दे वांट द इंटरनेशनल प्लेयर्स टू कम इन इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन दिस डोमेस्टिक क्रूज सेक्टर, एंड इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े, इसके लिए उन्होंने इसको चेंज किया है। सो बिजनेस हेड चेंज में सर 4 से 5 सेक्शन थे, मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं। सेक्शन 28 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को उन्होंने बिजनेस वो रेंटल इनकम रेजिडेंशियल हाउस की हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। 3615A में 10% से बढ़ाकर 14% कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं पेंशन वाला स्कीम में। सेक्शन 37 में वो जो फॉरेन सेटलमेंट आपने करी है वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। 40 स्मॉल बी के अंदर पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन के अंदर उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया है, और 44BC के अंदर डोमेस्टिक क्रूज वाला उन्होंने नया प्रिजम्पटिव स्कीम डाल दिया। पर पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन में टीडीएस भी तो लगा दिया। हाँ वो मैं टीडीएस की लिस्ट में आ रहा हूँ सर, सॉरी मैं आ रहा हूँ सर, उस पे आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, सॉरी आई एम जस्ट कमिंग टू। कपिल जी एमएसएमई की रिलैक्सेशन नहीं दी ना, 40 जो पेमेंट्स का था, काफी डिस्कशन में था कि मैडम ने बोला भी था कि इसको करेंगे। 43 भी है जो बहुत ज्यादा अभी भी सर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली गोपाल जी चैलेंज करना चाहिए लोगों को, वो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे चोपड़ा जी अप्रिशिएट करेंगे सर आप लोग कि वो बहुत गलत, मतलब उसको भी अभी तक उन्होंने रैशनलाइज नहीं किया है। नहीं करेंगे नहीं वो, हालांकि हर इलेक्शन स्पीच में उसने बोला कि हम करेंगे इसको। यस यस यस, जयपुर जाकर ही इट बोला वाज सेड इन एवरी इलेक्शन स्पीच दैट इट विल बी जयपुर में डन। भी जाकर बोला था, मुझे याद है सर हमारे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। Sir, for auditors, it has become an impossibility to verify those clauses. अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए पूरी साहब उसका तो रास्ता, अब देखिए बीमारी का उसका इलाज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लोग जाएं उसकी हाई कोर्ट में वैलिडिटी चैलेंज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और कोई तरीका नहीं है सर, मेरा हम्बल ओपिनियन है। एनी सर टीडीएस के चेंजेस सर, अब टीडीएस में चोपड़ा साहब इन्होंने चेंजेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक फाइनेंस बिल पे जब मैं बोलता हूं सर, कभी भी मौका मिलता है तो बात समझ में आती है ऐसे, हालांकि मैं प्रैक्टिस तो करता नहीं टीडीएस वाली सर, बट ये लगता है सर एज एन एकेडमिशियन कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ की हर एक बजट में टीडीएस को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा, जैसे आपने कहा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको बढ़ाते रहते हैं। उस जैसे वो परिवार है ना, टीडीएस परिवार के अंदर हर एक बजट में नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो दूधो नहाओ पूतो फलो चल रहा है, जैसे हर एक उसके परिवार में कोई बच्चा आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। मुझे कभी भी ऐसा लगता है एज ए लेमैन सेंस, एज एन एकेडमिशियन, कि मैं अगर कोई कंप्लायर कर रहा हूँ और डिडक्टर को भगवान सारे वरदान देगा तो भी वो टीडीएस नहीं कंप्लाई कर सकता। मतलब आई डोंट नो हाउ टू शुड से, आप तो बहुत सर हमारे प्रेसिडेंट रहे, बताइए कि आप ये सेक्शन, जब मैंने सर सीए क्वालिफाई करी 2004 में, आज
2024 में आ गए हम, तो उसमें पता नहीं गोपाल जी सेक्शन सी टीडीएस चैप्टर 17B है, इसके अंदर आप देखिए कितना सेक्शन, हर एक बजट में नया टीडीएस आता है। जैसे सर बोल रहे थे 194T आ गया कि पेमेंट ऑफ सैलरी एंड रेम्यूनरेशन पे भी आप टीडीएस पार्टनरशिप हम काटेगी। तो Yes. इतना ज्यादा एंग्जाइटी और इतनी ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म ऑन पार्ट ऑफ टीडीएस फॉर टीडीएस क्यों है गवर्नमेंट के माइंड में? कि आपको ये लगता है कि नहीं सब चीजें टीडीएस में ही आ जाए, तो फिर आप टीडीएस को, मैं तो सर एक बोलता हूं बड़े छोटे मुंह बड़ी बात, कि हर एक चीज को टीडीएस में डालना है तो फिर आप टीडीएस के बेस पे असेसमेंट कर दीजिए। फिर आप रिटर्न क्यों मंगाते हैं एसएससी की, फिर उसकी सिक्योरिटी क्यों करते हैं, फिर उसका केस भी खोलते हैं और आपको सबको टीडीएस भी कटवाना है और फिर उसका कुंडली मिलान भी करते हैं 26 ईयर्स के अंदर। तो दिस प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड सर, अगर इफ टीडीएस चैप्टर इज टू इंक्रीज डे बाय डे एंड एवरी बजट वी हैव a new, see I have a very serious issue here sir, 194T they have added, 206C में इन्होंने कह दिया कि अब हम लग्जरी गुड्स को और लाएंगे। बात ये नहीं कि लग्जरी गुड को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसका रैशनल क्या है सर? वो कह रहे नहीं हमारे को पता नहीं चलता, कई बार कि लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, वो बहुत महंगा सामान खरीदते हैं, वो टैक्स नहीं देते, इसलिए हमारे पास पकड़ने का तरीका ये है कि इनके ऊपर टीसीएस लगा दो। This is very difficult, sir. It is counterproductive. It means that your machinery efficient, your entire mechanism of collecting the information and making tax assessments is totally on the haywire. आपको उस पर जीएसटी भी चाहिए, हम्म। आपको उस पर जीएसटी भी चाहिए, आपको उस पर टीसीएस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, which will mean that you are making your own industry unattractive basically, if you really ask और me. उसमें ये लिखा हुआ है सर कई जगह, तो जो फिर पैराडॉक्सिकल वर्ड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नहीं, वो ठीक है, सब कुछ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। वो मैंने आपको बाईबैक वाला भी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बाईबैक वाला भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सब कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप उसको लॉन्ग टर्म गेन में ले जाओ, लॉन्ग टर्म लॉस में ले जाओ, लॉस गेन आपका है नहीं, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सर आई जस्ट स्टार्ट माय टीडीएस पॉइंट्स नाउ। इसमें इन्होंने कहा है 192 के अंदर दे से इन 192 सबसेक्शन 2B यू कैन नोट कि जिसका टैक्स कटना है सैलरी वाले एम्प्लॉय का, वो अपने एम्प्लॉयर को वो सारा डाटा दे सकता है राजेश भाई, की जो और कहीं टीडीएस टीसीएस भी कटा है वो भी दे सकता है एम्प्लॉयर को, और वो एम्प्लॉयर उसको कंसीडर करेगा ताकि उसको उस उतना अमाउंट तक उसको दिक्कत ना हो, मतलब उतना अमाउंट उसको क्रेडिट मिल जाए उसी एम्प्लॉयर से। तो सेक्शन 192 2B में दे हैव गिवन दिस रिलैक्सेशन काइंड ऑफ ए थिंग कि दैट एन एम्प्लॉय कैन इंटीमेट टू हिज एम्प्लॉयर अदर टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड इन हिज केस फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। 194 कैपिटल सी, नाउ सी जस्ट हियर खिवानी जी, ये चेंज बड़ा टिपिकल लगा मुझे, ये जैसे बात हो रही ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो चीज हायर 194J में आती है वो 194C में नहीं आएगी। क्या है सर? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा। 194C क्या है? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट सेज एंड पार्लियामेंट सेज और लेजिस्लेचर सेज कि साहब 194J में जो चीज आ गई हायर टीडीएस वाले में, वो 194C में नहीं आएगी। तो मुझे इससे ये पता लगा सर चोपड़ा साहब, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि वो कह रहे नहीं हमारे को ज्यादा वाला टीडीएस है चाहिए। हाँ। उल्टा नहीं कह रहे कि जो 194C में आता है वो 194J में नहीं आएगा। आप ऐसा भी कह सकते थे, आपने ये क्यों कहा कि जो 194J में आता है वो 194C में नहीं आएगा? उन्होंने आपको पेनल्टी से बचाया कि ये नहीं हो कि आप कम काट लें, बाद में कहें कि सरकार ने वो नहीं किया था, क्वेश्चन नहीं किया था। इसीलिए मैंने तो कहा सर कि हमेशा विद ड्यू रिस्पेक्ट में, आप तो बाद में आए भी, तो मेरा हमेशा एक ओपिनियन रहता है सर, ये सुझाव भी मतलब बड़ा छोटे आदमी की तरह, कि आप इतने सारे बजट्स में हर एक बजट में नया टीडीएस सेक्शन डाल देते हैं और बढ़ाते रहते हैं। तो इससे अच्छा अगर आपको सब पे टीडीएस कटवाना है तो आप एक बार बोल दीजिए कि कोई भी किसी को कुछ भी करेगा टीडीएस काटेगा। नेगेटिव लिस्ट दे दो एक। हाँ, it will make the life of the person very easy. Now you see this kind of interplays, this kind of cross referencing, this kind of cross relation is a very serious litigation issue. जब टीडीएस सर्वे होते हैं तो यही सब गलतियां पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट ढूंढता रहता है। Anyhow 194C का चेंज ये था सर, 194 कैपिटल सी में उन्होंने लिखा है जो चीज 194J में आएगी तो 194J का स्थान प्रथम स्थान होगा, 194C का स्थान बाद का स्थान होगा। ये लेमन सेंस में बात है। अब आगे बढ़ते हैं 194H 194 तीन सेक्शन है जिसमें रेट को 5% को 2% किया गया है। सेक्शन 194H कमीशन वाला, और ये जो इंडिविजुअल पे इन्होंने पिछले बजटों में लगाए थे 194IB और 194M, तीन सेक्शनों में टीडीएस रेट कम किए। जो मेन है मैं वही फोकस कर रहा हूं, 194 कैपिटल H, 194 कैपिटल IB एंड 194M। इनमें जो टीडीएस है वो पहले 5% की दर से कट रहा था, अब ये कह रहे हैं आगे के लिए जो आफ्टर दैट कट ऑफ डेट इट विल बी फ्रॉम 5% टू 2%। एक और चेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है सर 194IA में, वो भी मेंटेलिटी बता रहा है। 194IA क्या है? जब आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है सेक्शन 194IA में, खेवानी जी।
जॉइंट अब उसमें ओनर्स। इश्यू था कि अगर मल्टीपल ट्रांसफरर्स हैं और मल्टीपल ट्रांसफर, ये मतलब बहुत सारे बायर है और बहुत सारे सेलर है, तो जो थ्रेशोल्ड है 50 लाख वाला, वो पर ट्रांसफरर लगेगा या कैसे लगेगा? तो उन्होंने कहा वो पूरा एग्रीगेट लगेगा। क्या प्रॉपर्टी होगा? हाँ, क्वा प्रॉपर्टी होगा, एब्सोल्युटली राइट। मतलब लोग कह रहे थे इसको अलग अलग रिस्पेक्ट में देखेंगे सेलर के, तो उन्होंने कह दिया 194 आईए के अंदर एक प्रोवाइजो डाल दिया कि उसका थ्रेशोल्ड को एग्रीगेट कर दिया कि एग्रीगेट एट द प्रॉपर्टी लेवल, तो द मोमेंट इट विल बी क्रॉसिंग 50 लाख टीडीएस हैज टू बी डन। तो इससे मेरे को ये फिर पता लगता है, जैसे वो जो 194C वाला चेंज था कि 194J पहले रहेगा 194C बाद में रहेगा, ऐसे ही 194 आईए में एग्रीगेट डालने का मतलब है खिवानी जी कि टीडीएस का टीसीएस को आप लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सर कोई हर इसको- बार क्यों ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। 194 आईए हो गया सर। अब इसके बाद जो इन्होंने नया सेक्शन डाला है, जो हम बात कर रहे थे 194 कैपिटल टी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होंगी वो जो भी पार्टनर को अपने देंगी रेम्यूनरेशन वगैरह, उसके ऊपर 10% की दर से टीडीएस काटेंगे, जिसका 20,000 थ्रेशोल्ड है 194 टी। थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है इसका, हैं? थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है सर। कैसे सर? 7 साल का थ्रेशोल्ड 20,000। 20,000 थ्रेशोल्ड सर साल का। गोपाल जी अच्छा कैसे है? मतलब नहीं, आप डालते अच्छा हो है थ्रेशोल्ड, ना डालो, ना डालो पूरे पे ना। बोल दो, सर पूरे पे ही बोल दो, क्या मुझे दिक्कत तो है? आज चोपड़ा जी के रहने से बड़ी खुशी ये मिल रही है। मुझे लगता था कि मैं कभी क्रिटिसाइज करके बोलता हूं तो मुझे कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं करता, हालांकि यहाँ राजेश भाई के यहाँ तो सब अप्रिशिएट करते हैं, बट आज आपके रहने से मुझे बड़ी शक्ति मिल रही है सर, आई एम टेलिंग यू। मेरी नौकरी खतरे में है। नहीं 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 नहीं, मैं खतरे में सर, वो आप कोई भगवान के आशीर्वाद से चलना है बाकी बिहारी के सर। नहीं, वो ठीक है सर। 197 में सर दे हैव सेड कि 197 में जो लो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है उसमें 194 क्यू वाले सेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया है कि क्यू से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्यू वो सेक्शन ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता ये 194 क्यू में टीडीएस बनाया कैसे इन्होंने 194 क्यू का। बट अब वो कह रहे हैं कि चलो 194 क्यू से कुछ राहत मिलनी है तो राजेश भाई आप 197 का लो टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आती है सर दिमाग में वैसी लाइटर साइड पे कि जैसे 197 खिवानी जी हम अप्लाई करते हैं आजकल, कैसे डिसाइड होते हैं वो 197 सर्टिफिकेट? कंप्यूटर से होते हैं मैकेनिक फॉर्मेट में, और उसमें इतनी रिट जाना पड़ता है फिर हर एक केस में कई बार कि हाईकोर्ट को बोलने के लिए देखिए हमें हमारा 197 का केस बनता था तो भी हमें लो टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिला। And now they have included 194 capital Q in section 197 कि जो लोग 194 Q से पीड़ित हैं, विक्टिम है, वो 197 की शरण में जा सकते हैं। सेक्शन 198 कि जिनका बाहर कम टैक्स कट गया और वो इंडिया की इनकम में इंक्लूड नहीं करते, टीडीएस का क्रेडिट ले लेते हैं, तो सेक्शन 198 में उन्होंने लिखा है कि जो बाहर का टैक्स कटा है, क्या इंडिया में क्रेडिट ले रहे हो आप, तो आपको इनकम में भी इंक्लूड करना है ऊपर ग्रॉसिंग में। दैट इज अ चेंज इन 198। नहीं ये फिर तो बताइए ना, जैसे आपका टैक्स कट गया तो इनकम में इंक्लूड करते ही हैं बाकी इनकम, तभी तो हम। नहीं सर, वो क्या होता है ठीक ग्रॉस है। नहीं करते हैं, जैसे हम जैसे नेट ले लेते हैं, वो कह रहे हैं नेट अच्छा। नहीं लेंगे आप, ग्रॉस लेकर चलेंगे ओके, इंक्लूडिंग टीडीएस, हाँ ठीक है। खासकर जो आप क्रेडिट इंडिया में ले रहे हैं। हम्म, तो वो उसका पर्पज ये है कि जैसे आप ग्रॉसिंग अमाउंट करके लेके चलेंगे, नेट अमाउंट लेकर नहीं चलेंगे, ट्रू। और उसका पर्पज यही है कि उसका डबल बेनिफिट ले लेता है, वो वहां तो इनकम नहीं दिखाता और यहाँ क्रेडिट ले लेता है हम्म, फॉरेन टैक्स का। दैट इज द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट इन सेक्शन 198। ट्रू। करेक्शन स्टेटमेंट सेक्शन 200 में फाइल होती है, वो कह रहे करेक्शन स्टेटमेंट आप 6 साल तक ही फाइल कर सकते हैं, उसकी आउटर लिमिट लगा दी सेक्शन 200 में। करेक्शन स्टेटमेंट कब तक फाइल कर सकते हैं? गुड मूव, अच्छा मूव है ये। हाँ ये अच्छा मूव है, यू राइट सर, क्योंकि उसका मूव, ये आपने बिल्कुल सही कहा गोपाल जी, क्योंकि उसको डिडक्टर और डिडक्टी की कुंडली मैच होती रहे। बड़ा मुश्किल काम है डिडक्टर और डिडक्टी की कुंडली मैच होना हर एक टाइम पे सर, ये कुंडली बिगड़ती रहती है, कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है राजेश भाई। सेक्शन 200 मतलब आप 6 साल से पुराना केस खोल नहीं सकते ना, इसलिए 6 साल कर दिया सर यहाँ। ठीक है सर, वो ठीक है, अच्छा है, आपने बोल दिया गुड चेंज है तो गुड चेंज है सर। अरे 200 फिर कहने की बात ही नहीं बची। 200 कैपिटल है सबसेक्शन 3 कि जो लोग डिडक्टर, जैसे मान लीजिए कुछ तो डिडक्टर हैं जो स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जो नॉन डिडक्टर भी स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उनकी भी बोर्ड प्रोसेसिंग की स्कीम ला सकता है नॉन डिडक्टर के द्वारा फाइल की गई स्टेटमेंट्स की। दैट इज द चेंज। सेक्शन 200 कैपिटल ए में सबसेक्शन 3 हैज बीन इंसर्टेड दैट बोर्ड कैन स्पेसिफाई द स्कीम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय नॉन डिडक्टर्स। So there are various statements which are filed by the people who are not deductors in capacity. So they want that उसकी भी प्रोसेसिंग हो। सेक्शन 201 में ये लिखा हुआ है कि कितने लिमिट तक, कितने साल तक आपका केस खुल सकता है डिडक्टर का। पहले 7 साल था, उसको 7 साल को सबको जनरलाइज करके लिख दिया सेक्शन 201 में कि 6 साल तक टीडीएस की डिफॉल्ट प्रोसीडिंग हो सकती है सर, वहां पर भी 6 साल कर दिया 201 में।
आगे सर 206C में बहुत सारे चेंज है राजेश भाई। 206 कैपिटल सी जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, उसमें महत्वपूर्ण चेंज ये है कि उन्होंने कहा है कि नोटिफाइड लग्जरी गुड्स के ऊपर भी टीसीएस आ जाएगा आगे से, जैसे बोर्ड जिनको लग्जरी मानेगा। हालांकि लग्जरी इज ए वेरी, कहांगे चोपड़ा साहब, सर लग्जरी को डिफाइन करना ना बड़ा मुश्किल है सर, कि किसी के लिए किस टैक्स पर। मैं अपने मन में ही सोच रहा था, वो एक्ट में नहीं लिखा उन्होंने लग्जरी वर्ड, एक्ट में तो ये लिखा है कि जो गुड्स सीबीडीटी नोटिफाई करेगा उनको, मेमोरेंडम में लिखा है लग्जरी गुड्स। तो अब लग्जरी गुड्स एक्ट में तो है नहीं, और दूसरी बात आप लग्जरी मानोगे कैसे? तो राजेश भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसका एक पर्सपेक्टिव तो होता है, जो हमारे दोस्त ने बोला कि गोयल साहब, जब आप लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं और जो बहुत महंगा सामान खरीदते हैं ना, अब लग्जरी महंगा है नहीं मुझे नहीं पता, 10 लाख का लिखा है शायद उन्होंने, तो अभी टीसीएस अगर 10 लाख से ऊपर का सामान बिकेगा तो आपका, और आप लग्जरी गुड्स में आ गए तो आपका टीसीएस कट गया। प्रॉब्लम वहां नहीं है चोपड़ा साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा टीसीएस कट जाता है और जब हम उसका क्रेडिट मांगते हैं और जब हमारी रिटर्न के साथ वो बिल्कुल हर एक चीज को रिकंसाइल करते हैं हमारी इनकम के साथ, तब बहुत दिक्कत होती है सर। कि जब आप एक एक्सेसिव टीडीएस टीसीएस लाते हैं और मेरी इनकम कम रहती है, तो मुझे क्रेडिट लेने में और रिकंसाइल करने में, खासकर फेसलेस रिजीम में, बहुत दिक्कत होती है सर। इनका सबका डाउनवर्ड रहता है। और 206 में सर 3 चेंजेस और किए गए हैं, 3 चेंजेस और हैं 206 में। सर 206 में 3 चेंजेस और हैं कि एक तो सबसेक्शन 7A में उन्होंने वही टाइम लिमिट डाल दी है जो सेक्शन 201 में 6 साल तक टीसीएस की डिफॉल्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। दूसरा 206 कैपिटल सी के अंदर एक सबसेक्शन 12 डाला है, आप सब नोट कर सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि किन्हीं संस्थाओं को और किन्हीं पर्संस को, नोटिफाइड पर्सन को सीबीडीटी एग्जेम्प्ट कर सकता है कि उनके ऊपर टीसीएस लागू नहीं होगा उनकी ट्रांजैक्शंस पे, 206C सबसेक्शन 12। तो ये वाला चेंज का पर्पस ये था खिवानी जी कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट बॉडीज हैं, जो न्यूट्रल बॉडीज हैं, उनको वो कह रहे हैं कि बोर्ड को पावर दे दी कि बोर्ड नोटिफाई कर सकता है इन पे टीसीएस लागू नहीं होगा उनकी ट्रांजैक्शंस पे, उन पर्संस पे। दैट इज 206C सबसेक्शन 12। और 206C के अंदर लोअर टीसीएस के लिए भी कुछ स्कोप बढ़ाया है, लोअर टीसीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 206C के अंदर, कुछ पहले भी था उसके अंदर कुछ और ऐड भी कर दिया उन्होंने। तो इन सारा टीसीएस की अमेंडमेंट का सेंस ये है सर कि मेन अमेंडमेंट इसमें लग्जरी गुड्स वाली है कि जो लग्जरी गुड्स होंगे उनके अंदर एनहांस। अच्छा एक और चीज है कि जिन लोगों ने पिछली बार, जैसे जो जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, लिबरलाइज एमिटेंस स्कीम में टीसीएस कट गया सर, उनके पेरेंट को भी क्रेडिट मिल सकता है अगर वो माइनर की इनकम क्लब हो रही है, तो वो भी उन्होंने कहा कि टीसीएस का क्रेडिट कैन बी गिवन टू पेरेंट इन केस ऑफ माइनर हुज इनकम इज क्लब। दैट इज आल्सो अ पॉइंट। और कपिल भाई लग्जरी क्या है, लग्जरी गुड्स क्या है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सर। ये सब तो पावर उन्होंने रखी हुई है ना अपने पास। आपको याद नहीं जब हमने वो डिस्कस किया था, कौन सा सेक्शन था, 194N डिस्कस किया था ना एक बार कभी आपके यहाँ? ऐसा ना सर, जो एक गरीब आदमी है उसके लिए तो स्कूटर भी लग्जरी है, हमारे जैसे आदमी के लिए शायद मर्सिडीज भी लग्जरी है, और वो कईयों के लिए 5 करोड़ की गाड़ी भी लग्जरी नहीं है। तो ये इतना रिलेटिव टर्म है, हु विल डिफाइन? किसी को मतलब कि शगन के रूप में जेट मिल गया 300 करोड़ का, वो हो सकता है उनके लिए लग्जरी नहीं हो। पता है आयरॉनिकल बात क्या, यू विल अप्रिशिएट, मच अप्रिशिएट सर, यू कैन नोट डाउन कि जैसे एक जगह इन्होंने, जब एक्ट में तो कहीं लिखा नहीं लग्जरी वर्ड, नाउ यू सी मेमोरेंडम में 4 जगह ये वर्ड लिखा है कि सीबीडीटी उन्हीं गुड्स को नोटिफाई करेगी जो लग्जरी होंगे। अब मेरा कहना ये है कि अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसे गुड को नोटिफाई कर दिया जो अदरवाइज लग्जरी नहीं है, लेट अस से दिस, तो क्या एसएससी ये कह सकता है कि सब आप मेरे से गलत टीसीएस कटवा रहे हो? तो अब एक और चेंज है सर, आप आगे नोट कर लीजिए, जो मधुर चेंज है 276B का, जो डीक्रिमिनलाइजेशन है राजेश भाई, कि टीडीएस का प्रोसिक्यूशन जो हुए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि जिन्होंने टीडीएस काट लिया, लेट जमा कराया, उन पे बहुत सारे प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं, हुए हैं, और डिपार्टमेंट ने बहुत कंपाउंडिंग भी लिया, सेक्शन 276B 276B। नाउ दे हैव सेड दैट कि इफ यू हैव डिडक्टेड द टैक्स एंड इफ यू हैव लेट पेड इट बट पेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट, prescribed time of filing the statement, then your default will not be there. So somebody was saying, Chopra sahab, that whether this change can be used for other pending cases and previous cases, in my opinion, answer is yes. Because the mischief of the provision which Honorable Finance Minister has said, that they want to seriously decriminalize Section 276 capital B, decriminalize, meaning thereby the default, even if it was earlier there, but now in the new thing which they have suggested, the benefit can be taken because it is a benevolent change. And the sense of the change is to give succor and relief.
in my respectful submission, नहीं, one पर कपिल भाई हम्म। एक बात बताइए, आपने टैक्स भी लेट काटा है या लेट डिपॉजिट करवाना, पर आपकी रिटर्न भी लेट है तो क्या होगा? आपकी रिटर्न भी लेट है, मतलब सर जो डिडक्टर की रिटर्न, नेचुरली अगर रिटर्न भी आप लेट फाइल कर रहे हो तो क्या होगा? तो रिटर्न लेट फाइलिंग की पेनल्टीज अलग हैं लॉ में। यहाँ पॉइंट नहीं, ये है पर सर कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपने स्टेटमेंट फाइल करना है, रिटर्न फाइल करनी है, अगर उससे पहले आप डिपॉजिट करवा देते हो तो नहीं होगा डिक्रिमिनलाइज। मैं ये कहता हूँ अगर आप स्टेटमेंट जो फाइल कर रहे हो वो भी लेट फाइल कर रहे हो फ्रॉम द ड्यू डेट, देन व्हाट हैपेंस? नहीं, वो तो टाइम लिमिट उन्होंने उसका ड्यू डेट जो है उसका लगाया सर, वो कैश मैं आपको अगर सही समझ रहा हूँ तो उसका चीज का सेंस ये है कि अगर आपका मान लीजिए जो आपने टीडीएस काट के लेट जमा कराया है, जो उसकी रिटर्न फाइलिंग की रेलेवेंट ड्यू डेट है उससे पहले आपको जमा कराना है, उससे पहले, हाँ। देन इट इज अगर उसने अगर अपनी रिटर्न भी ड्यू डेट के बाद जमा करवाई है तो क्या होगा? अगर रिटर्न लेट फाइल जमा कराई, आई डोंट थिंक दैट विल चेंज द हाँ, वो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि 2 minuses will not make plus. That is the point I'm trying. आपका शायद एप्रीहेंशन ये है कि मिस्टर गोयल की अगर वो टीडीएस का भाई कपिल उसको रिटर्न बाद में जमा कराएगा, हाँ। तो शायद ये उसकी इम्यूनिटी ले ना ले। हाँ, होना ये नहीं चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट इज दिस कि जो लोग उस टाइम से पहले टैक्स काट के ब्याज के साथ और उसका जो बनता है वो जमा करा दें गवर्नमेंट। हाँ, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, वो तो दैट्स अ गुड प्रोविजन, वेरी फ्रैंक, इफ यू आस्क। और इसका इम्पैक्ट राजेश भाई रेट्रोस्पेक्टिव मिलना चाहिए। और एक चेंज में सर सेक्शन 271H में उन्होंने लिखा है कि जो लोग टीडीएस काट के टाइम से नहीं जमा कराते स्टेटमेंट वगैरह जो आप बोल रहे हो, उनको पहले कुछ 1 ईयर का रिलैक्सेशन था, उसको 1 मंथ किया 271 कैपिटल H में। देयर वाज सम आउटर विंडो कि कितने दिन में आप कंप्लायंस कर सकते हैं बिलेटेड कंप्लायंस सेक्शन 271H की पेनल्टी से बचने के लिए, उसको पहले 1 ईयर था तो उन्होंने उसको 1 मंथ कर दिया है 271H में। तो ये सारे टीडीएस के चेंजेस मिलाकर मेरे को जो समझ में आया, जो 5 से 2% कर दिया वो अपनी जगह है सर। जो 192(2) का चेंज है जिसमें वो सैलरी वाला बता सकता है वो अपनी जगह है, 194C और 194J को क्रॉस लिंक करा है, वो 194J को प्रथम स्थान दिया है, 197 में 194Q को डाल दिया है, और सेक्शन 201 में 6 साल कर दिया टाइम लिमिट को। तो ये सब मिलाकर चेंजेस वैसे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा खतरनाक चेंज नहीं है, पर मेरे को जो बात बार बार चुभती है वो यही है कि हर एक साल टीडीएस के सेक्शन में कोई नया प्रोविजन ऐड हो जाता है और फिर उसके लिए एडिशनल कंप्लायंस करना पड़ता है। फिर जब हम उसको कंप्लाई करने आते हैं और उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, टीदिंग प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो फिर उसमें लिटिगेशन होती है सर, और फिर हम उसके अंदर फिर अमेंडमेंट करते हैं वही कि तू डाल मैं डाल तू पात या पात डाल, पता नहीं क्या है सर। तो भाई जो ये पार्टनर्स की सैलरी रेम्यूनरेशन पे टीडीएस काटना है, उसका कोई वो दिया उन्होंने रेट? 10% है ना सर? 10%। 10% है। और बताइए 10% रेट मतलब ठीक है, उनका पर्पस ये है कि हर एक चीज पहले तो टीडीएस में आ जाए किसी तरीके से, फिर आपका 26AS में आ जाए कुंडली में, फिर आप उसका रिकंसिलेशन दो, फिर उसका आप ये बताओ कि आपने इनकम दिखाई नहीं दिखाई उतनी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी देना होगा। हाँ सब कुछ करना होगा। एनी हाउ सर, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। एक तो सेक्शन, बिफोर आई कम टू रीअसेसमेंट एंड सर्च असेसमेंट विच इज द मोस्ट सीरियस चेंज ऑफ दिस बिल, मैं उसमें आने से पहले 2 चीजें आपको हाईलाइट कर देता हूं सर। सेक्शन 56(2) क्लॉज 7B में जहां शेयर प्रीमियम टैक्स होता था, जिसको एंजल टैक्स बोला जाता है, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B कि क्लोजली हेल्ड कंपनी टेकिंग शेयर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम एट मोर देन फेस वैल्यू, दैट हैज बीन कि वो उसके बाद नहीं लगेगा, असेसमेंट ईयर 25-26 से नहीं लगेगा। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, असेसमेंट ईयर 25-26 से सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B ऑपरेटिव नहीं रहेगा। तो जो भी व्हाट कुड बी द इंटेंशन कपिल जी, है इसके पीछे इंटेंशन क्या लग रही है आपको? इंटेंशन यही है कि मैं कपिल जी की राय जानूंगा इसमें। नहीं सर, मेरी राय नहीं, आप बड़े हैं, आप बताइए सर, आप हमारे नहीं president सर, हैं भाई। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आप कुछ भी कैपिटल लगाएं, कैपिटल आप कम लगाएंगे, प्रीमियम आप कितना भी करेंगे, MCA will continue to lose. Yes. MCA will continue to lose for that matter. I don't know what can be the intention. इसमें इंडस्ट्री का प्रेशर है, ये 100% है, नहीं तो ये क्लॉज जाने का मतलब ही नहीं था। मतलब ही नहीं था सर। जिस कंपनी की नेटवर्थ कुछ नहीं है, आप अननेसेसरी उसकी वैल्यूएशन करवा के कुछ भी प्रीमियम ले रहे हो। और ये जो वैल्यूएशन आज हम सारे इश्यूज वैल्यूएशन के देख रहे हैं मार्केट के अंदर भी, आई थिंक वी आर गिविंग सॉर्ट ऑफ इम्पेटस टू दैट। नहीं, मुझे आपकी बात सुन के एक आभास होता है सर, जैसे आपने बोला, आपने बहुत सही पहले कि हो सकता है इसमें खिवानी जी की जैसे अब इन्होंने 1 साल 2 साल किसी के लिए छोड़ दिया जिसको कॉप अप करना, बाद में 2 साल पे आए, फिर आ जाओ।
फिर आ जाओ, क्या दिक्कत है? और हमारा जब से गोपाल जी, मैं 20 साल जब से आप सर इंस्टीट्यूट में, जब से मेरे को 15 साल हुए हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ चीज इन्होंने पहले छोड़ दी, फिर बाद में उसी को ले आए। ब्लॉक असेसमेंट। नहीं, बहुत चेंजेस सर ये इन्होंने स्टार्टअप्स को दिया था बेनिफिट, ये स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया था। अब वो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दैट टू नोटिफिकेशंस, फिर इन्होंने इसके बाद में फिर अब ये इसको हटा ही दिया। आप एक चीज देखो धमीजा जी, मैं आपको बताता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे से बड़े नहीं, आप सोच धमीजा जी, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, और आप मेरे बहुत फिर रहे हैं। हाँ। जब आप एक नोट करिए बात, पिछले वाले बजट में आप देखिए 56 to 7B में ये लिखा हुआ था, उससे पहले तक मेरे को याद आ रहा है, पिछले से पिछले बजट तक, कि सिर्फ जो रेजिडेंट से आप प्रीमियम लेंगे वो आएगा, नॉन रेजिडेंट वाला नहीं था। इन्होंने बाद में उसको नॉन रेजिडेंट को भी इंक्लूड किया और आप सबको हटा दिया। आप मुझे ये बताइए, चले छोड़िए सारी बातें, अगर आप बात करें सब जस्टिफाइड है। आप पहले कह रहे हैं रेजिडेंट के साथ नॉन रेजिडेंट भी इंक्लूड करेंगे, और फिर कह रहे हैं सबको बाहर करेंगे। ये हम, चल हमारे पास तो कोई, हम तो नागरिक हैं, हम तो पूछ नहीं सकते क्यों कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी आपकी मेकिंग क्यों हो रही है। हमारे को शायद संविधान में अधिकार ही नहीं है पूछने का किसी को, पर ये कोई तरीका है? आप पहले तो कह रहे रेजिडेंट के बाद नॉन रेजिडेंट भी आएगा, और फिर कह रहे सब कुछ साफ हो जाएगा। ये आप नहीं छेड़ते तो मैं बोलता नहीं बात, सॉरी धमीजा जी। नहीं, आप अपनी जगह जो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल जी, आपने ठीक कहा है, लेकिन द इशू बिफोर द मिनिस्ट्री वाज वो सर उसको इनके नॉन रेजिडेंट को स्टार्टअप के डालने की लिए इन्होंने मेरी बात प्लान को बेनिफिट दिया था, सर, उसमें नॉन रेजिडेंट और को क्यों वो include कर लिया? ऑपरेटिव ही नहीं हो पा रहा था। मैं कह रहा हूं सर, आपने नॉन रेजिडेंट को क्यों इंक्लूड किया फिर? जब नॉन रेजिडेंट, तो जब सेक्शन प्रणब मुखर्जी लाए थे 2012 में, आप नोट करिए, जब से लेकर पिछले 10 साल तक नॉन रेजिडेंट को शेयर प्रीमियम पे कोई 56 to 7 भी नहीं लगता था। पिछले से पिछले बजट में ऑनरेबल FM मैडम ने इसको कहा कि नहीं, नॉन रेजिडेंट को कैसे छोड़ देंगे, हम उसको भी लेंगे, और अब आपने पूरा सेक्शन छोड़ दिया। अच्छी बात है, छोड़ दिया तो हमें तो खुशी है, बट मैं बता रहा हूं कि इसमें पॉलिसी का आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसने पहले नॉन रेजिडेंट ऐड किया था उसमें जबरदस्ती, और अब सबको छोड़ दिया रेजिडेंट वाले नॉन रेजिडेंट वाले को, उसके पीछे में उसमें वो क्या है, सेंस क्या है, रैशनल क्या है? What I understand is the rationale behind it, all this is they wanted to give this benefit only to the startups, और वो स्टार्टअप का वो जो बेनिफिट है वो ऑपरेटिव ही नहीं हो पा रहा था, जो मेरे को जितना समझ आया। आपकी बात को फुल चढ़ाए सर, आप बड़े हमारे, आपकी बात को फुल चढ़ा आगे बढ़िए। अगर ये लिख दें, अगर ये लिखें कि स्टार्टअप्स के लिए है तो समझ आती है, पर बाईजूस भी स्टार्टअप थी, पेटीएम भी स्टार्टअप थी, क्या कुछ हो रहा है वो हम सबको मालूम है। वो तो एंजल और टैक्स, मुझे सर आप कहना नहीं चाहिए। सर आप And कह रहे हैं, वो तो एंजल 70% टैक्स बोल रहे हैं, वो एंजल टैक्स बोल रहे हैं, एंजल टैक्स। और 90% of our startups have failed actually. That's also a matter of fact. और I इसमें fully agree sir। और वो पता की कहते हैं, वो कहते हैं कि राइट they attribute one such reason कि स्टार्टअप्स ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी मैं चोपड़ा जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, थोड़ा सा प्लीज, सॉरी। 56 सॉरी सर, गुस्ताखी माफ करके 56 सेक्शन 2 क्लॉज 7B का जो चेंज है वो असेसमेंट ये 25-26 से सबके ऊपर उन्होंने हटा दिया, चाहे रेजिडेंट से आपके पास प्रीमियम आ रहा है, चाहे नॉन रेजिडेंट से, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट EY 25-26। अब दूसरा चेंज इसी के साथ सर, जो इंपॉर्टेंट चेंज है जो फिगर करना है हमारे को, सेक्शन 251 में एक CIT अपील को पावर नहीं थी चोपड़ा जी हमारे यहाँ पिछले 2001 से अभी तक कि सेट असाइड कर सके वो केस। तो उन्होंने कहा कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 में हुई है उनमें एक CIT अपील को पावर दी गई है सेक्शन 251 में कि वो केस सेट असाइड कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज राजेश भाई। ये चेंज क्या है अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो केस हमारे CIT अपील पे पेंडिंग है या नए जाएंगे, उनमें जिनमें इंप्यूग्ड ऑर्डर 144 का खिवानी जी पास्ड है, उसमें CIT अपील को पावर दी गई है एक्ट में इस बिल से कि वो उस असेसमेंट को सेट असाइड भी कर सकता है डी नोवो असेसमेंट के लिए AO को, जो पावर 2001 के बाद से अब तक नहीं थी। तो ये चेंज आप नोट कर लीजिए सेक्शन 251 का सर। इट्स अ वेलकम चेंज आई थिंक, पॉजिटिव चेंज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट विल डेफिनेटली, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। एक और पॉजिटिव चेंज आप नोट कर लीजिए सर, 139 सबसेक्शन 9A में रिटर्न ऑफ इनकम जो CBDT डिले कंडोन करता है रिटर्न फाइलिंग की, उसको भी प्रॉपर रिटर्न का दर्जा दिया जाएगा। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9A के अंदर संशोधन किया गया है कि जो सेक्शन 119 में CBDT ने सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास करके ITR की फाइलिंग को डिले किया है, उसको 139 सबसेक्शन 9A में रेगुलर रिटर्न मान के उसकी असेसमेंट होगी और उसका टाइम लिमिट होगा सेक्शन 153 सबसेक्शन 1A में। तो सो चेंज इज दिस कि once CBDT condones the filing of delay in return in 119 order, then the return will be given proper status under 139 subsection 9A and the consequent assessment can be framed till 153 subsection 1A.
So this is also a positive change, Gopal ji. कि to take लीगल चाइल्ड हो जाएगा, sorry, लीगल चाइल्ड हो जाएगा, लीगल चाइल्ड हो जाएगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उसका कॉन्सिक्वेंशियल असेसमेंट भी प्रॉपर हो सकता है, वो उसको प्रॉपर स्टेटस दे दिया है. एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट आगे के लिए 40% से 35% कर दिया. दे वांट कि वी वांट रियल फॉरेन कैपिटल टू कम इन इंडिया. ये उन्होंने लिखा है बजट की स्पीच में कि हमने इसलिए चोपड़ा जी इसको 40 से 35% कर दिया. हालांकि मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया. इन्होंने पहले तो कभी 40 कहा, फिर वही बात हो गई कि जैसे आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, जैसे पालकी वाला साहब बजट स्पीच देते थे ना धमीजा जी, तो उनकी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, तो हमारे गुरु रहे सबके इंडिया के टैक्स गुरु, लीगल गुरु, वो कहते थे पॉलिसी मेकिंग चोपड़ा साहब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंसिस्टेंसी हो, एक आधार ऐसा हो. ऐसा नहीं कि आज आप कह रहे हैं कि ये चीज ऐसे है, कल आप कुछ और कह रहे हैं, परसों फिर आप कुछ और कह रहे हैं. और जो दो नए चेंज डिस्कस करने वाला हूं वो मुझे इतना टिपिकल लग रहा है सर. मुझे लगता है कि हमारे देश में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग बॉडीज की दिस चेंज ऑफ रीअसेसमेंट एंड सर्च असेसमेंट, आई बिलीव एवरीथिंग इज मेड मॉकरी ऑफ एवरीथिंग सर. कि हम पहले कुछ करते हैं, फिर उसमें सीखने की कोशिश करते हैं, जब तक वो न्यूट्रलाइज नर्चर नहीं होता उससे पहले उसको वापस ले लेते हैं. मेरे को ये चोपड़ा जी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में कहीं पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो अपने बनाए हुए लॉ को कभी भी राजेश भाई रिपील कर सकता है, चेंज कर सकता है. ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में. बट क्या ये पावर भी है कि आप एक चीज को, पॉलिसी को लाएं और उस पॉलिसी को एक एंड तक, लॉजिकल एंड तक ले जाए बिना खिवानी जी उसमें यू टर्न ले लें? अब ये दोनों चेंजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं सर, रीअसेसमेंट और सर्च असेसमेंट सर. सर पावर तो है, पावर है सर, पावर है. और सर ऐसा है, नाना पालकी वाला ने ये लिखा था अपनी किताब की टॉप लाइन पे, अवर फाइनेंस बिल इज लाइक ए रेलवे टिकट विच इज वैलिड ओनली फॉर वन ट्रिप. बहुत सुंदर सर. ये मुझे नहीं पता था, ये आगे के कभी मेरे को ये उन्होंने लिखा हुआ सर, चोपड़ा साहब उन्होंने लिखा हुआ है सर. ये लाइन काम आएगी आपकी, मुझे आई विल यूज इट. ठीक है सर, थैंक यू. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस. कपिल जी विद ड्यू रिगार्ड, मैं ये आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले आप 15-20 साल में देखे इतने प्रोसीजरल चेंजेस और चेंजेस ऐसी आ गई, अभी वो लॉजिकल उसका कंक्लूजन नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर भैया जी मुझे सुने आप, थोड़ी देर सुने, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि बहुत क्रिटिकल बात है. क्योंकि अब सबसे, अब हम हमारे पूरे आज के शो का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड पे पहुंच गए हैं हम. यस यस. और क्योंकि मेरा फेवरेट प्रोविजन भी है चोपड़ा जी, मैं सुबह से लेकर रात तक आजकल 148 के अलावा कुछ करता नहीं हूँ, और मेरे पास काम नहीं. अब क्या है सर, इसमें क्या हुआ सर? आई विल जस्ट गिव ए स्लाइट बैकग्राउंड. एवरीबॉडी नोज कि दैट इनकम टैक्स एक्ट वाज ओवरहॉल्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 बाय द आवर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर. दैट old 148 provisions were rehauled in 2021, which was just 3 years ago. In that, entire section 147, entire 148, entire 148A, 149, 151 was overhauled. And we have just come 3 years hence that line. And in that change, Rajesh, by very serious change was made in 2021. In that, at that time, 2 serious changes were made. Normal 148 was overhauled. And secondly, search assessment, which was hitherto completed under section 153A and 153C, was made merged in 148. So search conducted after 1st April 2021 was also subject matter of assessment in the new 148. Now, see, there are 2 very disturbing features here, Tamija ji, with due respect. One disturbing feature is this, that entire section 148 has been recently overhauled in the Finance Act 2021. They themselves have said in this memorandum, yes, sir, we have done it in 2021, but we have got a lot of representations that this law is not working well, so we are again changing it. Somebody can say it is absolutely right, there is no problem with it, but I will tell you what problem now it will have. You are saying, what Chopra Sahab, they are saying, that for the cases which have been reopened, Gopalji, till 1st September 2024, the cutoff date for the new law of 148, which will be now promulgated by this bill 2024, will be cutoff date will be 1st September 24. Now, if a case has already been reopened prior to 1st September 2024, the applicable legal regime will be the regime prior to Finance Bill 24. राजेश भाई समझ में आ रहा है? अगर आपका केस, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर आपका केस 1 सितंबर 2024 से पहले खुला है, तो आपके ऊपर जो प्रणाली लागू होगी 148 की, वो फाइनेंस बिल 2024 से पहले वाली होगी. अगर आपका केस 1 सितंबर 2024 के बाद खुल रहा है, या सर्च आपकी 1 सितंबर 2024 के बाद हो रही है, तो आप पे जो अब फाइनेंस बिल बता रहा है वो प्रणाली लागू होगी. पहले तो ये लिख लीजिए कि इसमें कट ऑफ डेट कौन सी है,
यस सर। और ये अपने आप में बहुत सीरियस आर्बिट्रेरीनेस होगी जो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल में भी डिस्कस करके आगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा, कि आपने ये कह दिया कि 1 अक्टूबर की एक फॉल्स सीलिंग लगाकर कि साहब 1 अक्टूबर 24 से पहले के लिए सब पुराने वाले रहेंगे और 1 अक्टूबर 24 से नए वाले रहेंगे। चलिए, दूसरी बात सर इसमें अंडरलाइन करने वाली ये है कि दैट now when they have made, Chopra sahab, search assessment made part of 148, now they say no, this is not good. We have found our field formations have given a suggestion कि search assessment cannot be done in 148, it is creating problems, so please make search assessment again separate provision. Now Rajesh bhai, see how the clock is moving in like Mahabharat. We have again gone back to block assessment 158 BC and 158 BD. Yes. Not 153A, 153C. It is now we are going back to 158 BC and BC block assessment of 6 years. Again, chapter 14B has been revived and reincarnated. Second point, for search which will take place after 1st September 2024, the assessment regime of new search cases after 1st September 2024 will be block assessment. Before that, it will be 148. If search is taking place, Gopalji, before 1st September 24, 148 will be done as before Finance Bill 24. But अगर search 1 सितंबर 24 के बाद की है तो उसपे जो असेसमेंट होगा वो ब्लॉक में होगा, और अगर सर्च 1 सितंबर 24 से पहले की है राजेश भाई, तो जो 1/4/21 से चेंज हुआ था 148 वो लगेगा। आप देखिए कितनी पीड़ा होगी, आपको लग नहीं रहा क्या? चोपड़ा साहब, मैं भी किसी दोस्त से डिस्कस कर रहा था, बड़े लर्नेड, पता नहीं वो भी होंगे नहीं होंगे, कि इन्होंने बिल में, ये मेमोरेंडम में बड़ी अच्छी बात लिखी कि साहब जब हम 2021 में चेंज करके लाए तो अब इससे एक बात पता लगती है, आई डोंट नो मुझे कहनी चाहिए कैसे कहूं मैं अपनी बात को, फिर धमीजा साहब आप भी सुनना, कि उन्होंने कहा कि साहब जब 2021 में हम लेकर आए तो हमने 2-3 सालों में, अभी तो 3 साल ही हुए हैं, तो हमारे को फील्ड ऑफिसर्स ने कहा राजेश भाई कि हम ये सर्च असेसमेंट 148 में कर ही नहीं पा रहे हैं, इसमें बड़ी सारी दिक्कत आ रही है। उन्होंने लिस्ट करी है मेमोरेंडम में, कई प्रॉब्लम बताई हैं। आप इनको छोटी मोटी प्रॉब्लम मत मानिए, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। उन्होंने उसका संज्ञान ले लिया, अच्छी बात है, चलिए कि लेजिस्लेचर ने कहा हाँ ये। अब आप क्या कह रहे हैं, जिनकी किस्मत पुराने वाले जैसे 1/4/21 के बाद सर्च हुई और सितंबर 24 से उसने क्या गुनाह कर दिया, इसका मतलब आप कह रहे हो वो सवारी अपने हवाले है, हम 1 सितंबर 24 से जो नया सर्च होगा उसके बाद उसके लिए हम नई बात बता रहे हैं, वरना वो जो झेल रहा है वो झेले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल में लिखा हुआ, अरे ये लॉ में लिखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं हमारे को इतनी सारी प्रॉब्लम नजर आ रही है, बट जो हम रेमेडी दे रहे हैं, जो हम दवा दे रहे हैं, वो 1 सितंबर 24 की दवा दे रहे हैं कि जिसकी सर्च, अब गोपाल जी, जिसकी हो चुकी सर्च 1/4/21 के बाद 3 सालों में पिछले, और जिसकी असेसमेंट पुराने 148, ये जो बोल रहे प्रॉब्लमेटिक 148 में होनी है, तो इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा वो, प्रॉब्लमेटिक। और ये आप फिर धमीजा जी कहेंगे जो है उसकी किस्मत में लिखा था प्रॉब्लमेटिक रहना, उसको वो उसका प्रारब्ध था कि वो, सॉरी चोपड़ा जी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, उसका प्रारब्ध था उसको ऐसे ही मरे, उसकी कुंडली में यही लिखा, कुंडली में लिखा था। आई एम सॉरी सर, इट इज वेरी टिपिकल सर। मेरे को तो लगता है लोगों की लाइफ रियून हो जाती है इस तरीके की चीजों में। अगर आप मान रहे हो कि प्रॉब्लमेटिक है तो आपको तो उसको शुरू से हटाना चाहिए। आप कपिल जी, आप कह दो ना, एक प्रपोजल दे दो कि भाई जिसको पहले हो गई है 1 सितंबर 24 से पहले, उसको भी न्यू उसमें लेके ऑप्शन दे दो, वो करवा ले। नहीं पॉइंट, आप इसका एक और रैशनल, आपके पास सही है, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं ये बात कहता ही नहीं आपको, इसलिए मुझे होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ डेट डाली, आप सोचिए सर, कट ऑफ डेट कौन सी डाली है सर? वो क्या कह रहे हैं, नया ब्लॉक असेसमेंट किसके लिए लागू होगा? जो 1 सितंबर 24 के बाद सर्च होगी। इसका मतलब जो कल सर्च होगी और जो 1 सितंबर 24 से पहले सर्च होगी, उनके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? जो प्रॉब्लमेटिक 148 है, ये मैं बोल रहा हूं। वो 23 जुलाई भी नहीं है, वो 23 जुलाई भी नहीं है सर, वो 23 जुलाई। लेकिन ये है ना कि वो, हम ये सरकार को ये निवेदन करें हाथ जोड़ के कि आप मान रहे हो कि ये डिफिकल्ट, आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आपके पास सही है। हम उनको निवेदन करते हैं, हमारा पोस्ट बजट मेमोरेंडम इंस्टीट्यूट का जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे कि इन पुराने लोगों की भी समस्याओं को सुलझाओ। आगे बढ़ते हैं, मैंने अपना हाईलाइट कर दिया पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये चोपड़ा साहब हमारे बीच में बैठे हैं और यही तो करवाएंगे। नहीं, वो तो है ही, पर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। राजेश भाई, इन्होंने जो अब चेंज किया है, देखिए व्हाट दे, आप सब नोट कर लीजिए कौन कौन से सेक्शन रीअसेसमेंट के चेंज हुए। मैं क्विकली लिखवा रहा हूं। सेक्शन 148 को पूरा चेंज कर दिया है, 149 को पूरा चेंज कर दिया है, 148 कैपिटल ए जो हमारा फेवरेट सेक्शन था उसको भी चेंज कर दिया है, 151 भी चेंज कर दिया। नहीं खिवानी जी, मैं बता रहा हूं, मैंने इसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। 151 भी चेंज कर दिया। नहीं, मैं एक एक करके बताता हूं सर। 148 में क्या किया इन्होंने, 148 में उन्होंने उसको अंदर बहुत सारे सबसेक्शन डाल दिए अभी,
और एक एक्सप्लेनेशन जो इन्फॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम वाला क्राइटेरिया था वो एज इट इज रखा है, आप सब नोट कर सकते हैं। नए 148 के लॉ में फाइनेंस बिल 2024 से जो बात हो रही है उसमें क्राइटेरिया इन्फॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम का ही है। उसमें चेंज क्या है वो आप नोट कर लीजिए। चेंज ये है, जैसे उन्होंने कहा कि पहले 3 साल से पीछे रीओपनिंग होती थी तो सैंक्शन देता था चीफ कमिश्नर और वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और 3 साल के अंदर कमिश्नर। अब क्या है, अब सिर्फ एक ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सेक्शन 151 में, राजेश भाई एडिशनल कमिश्नर। बताइए हम कहां से कहां उतर के आ गए? क्या आप सेक्शन 151 में अब सब केसेस के लिए एक ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, दैट इज एडिशनल कमिश्नर ऑब्लिक जॉइंट कमिश्नर। दूसरा चेंज कि वो कह रहे हैं सर्च को यहां से हटा दिया, सर्च वाले केसेस को, सर्वे वाले यही रहेंगे, जो सर्वे होगी वो भी यही 148A में होगा। 148A में एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट ऐड किया जो पॉजिटिव मुझे लगा। 148A में उन्होंने ये लिखा है कि जब आपको शोकॉज आएगा 148 से पहले, तो उसमें ओसवाल जी आपको ये भी बताया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको जो जिसके बेस पे 148A इशू हो रहा है वो साथ लगा के दी जाएगी शोकॉज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 कैपिटल ए के अंदर जो 148 से पहले का प्रोसीजर है उसमें डिपार्टमेंट आज तक हमारे को कई बार वो रिलाइड अपॉन मटेरियल और इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, बट जो फाइनेंस बिल 24 ने बात बहुत अच्छी लिखी है 148 कैपिटल ए नए वाले 148A में कि शो कॉज के साथ आपको अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई होगी। आप मेरी बात नोट कर रहे हैं सर? बाकी जीके एंड ड्राइव अब आप समझ आइए। नहीं वो ठीक है, नहीं अभी भी नहीं सर, अभी आगे बढ़ने दो सर, रुक जाओ अभी बीच में नहीं सर, सॉरी समझ जाइए, सॉरी। तो मैं कहां बोल रहा था, एक तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी में चेंज हो गया, हम सेक्शन 151 में अब जो नया 151 है उसमें सिर्फ एक ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी एडिशनल कमिश्नर। दूसरा 148A में मैंने बताया कि उन्होंने जो शोकॉज आएगा आपको 148 से पहले उसके साथ इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। हम इस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिव भी मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आप नोट कर लीजिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, उन्होंने टाइम लिमिट कम कर दी है। 149 के अंदर जो 10 साल वाली टाइम लिमिट थी राजेश भाई उसको कम कर दिया 5 साल 3 महीने। अब आउटर लिमिट किसी भी 148 को देने की है 5 years 3 months। नॉर्मल 3 साल वाली एज इट इज है, 3 साल 3 महीने। अभी आप 3 महीने 5 महीने के 3 महीने के चक्कर में मत पड़ना कि गोल साहब ये 3 महीने क्यों है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों है। 149 में ये लिखा है नए में कि नॉर्मल खिवानी जी रीओपनिंग हो सकती है 3 years 3 months, और 3 year 3 months से पीछे आप कब तक जा सकते हैं? 5 years 3 months। ये 3 month मुझे लगता है ग्रेस पीरियड है, और इसका 5 year 3 months के पीछे 3 years से जाने के लिए पीछे वो 50 लाख का जो मॉनिटरी क्राइटेरिया था 50 लाख रुपए का राजेश भाई, वो एज इट इज है। उसमें वो फीचर वाली, असेट वाली और एंट्री वाली कंडीशन वाली चीज है। तो इसका मतलब मार्च में ना करके जून तक कर सकते हैं, और क्या बात है। पर 5 साल 3 महीने कर दिया उसको, 10 साल का तो कम से कम फोबिया खत्म हुआ सर, और वो 6 साल वाला। अब कम से कम ये लड़ाई तो आप देखिए कितना 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 टाइम वेस्ट करने के बाद ये समझ में आया गवर्नमेंट को भी बात कि जब उन्होंने 2021 में 10 साल रख दिए थे, अब वो 5 साल 3 महीने क्यों कह रहे हैं? बाकी बातें आप 2024 में समझ में आई है, हैं? 25 में हो सकता है, 25 में रिवर्स कर दें कोई इसको। कैसे 10 किया था आपको याद हो? चलिए सर, चलिए छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट सॉरी। और 148 में एक बहुत सीरियस चेंज है, उन्होंने लिखा है कि जो भी सेक्शन 135A की इंफॉर्मेशन आती है ई वेरिफिकेशन वाली, उसके बेस पे बिना 148A करे डायरेक्ट 148 हो सकता है, जो 135A वाला इंफॉर्मेशन है राजेश भाई, और उसके लिए डायरेक्ट 148 होगा, 148A नहीं होगा। तो नया वाला जो सेक्शन 148 है उसमें सनसेट क्लॉज भी है, मैंने आपको बता दिया 1 सितंबर 24 वाला। पुराने केस पुराने 148 के हिसाब से होंगे जो अभी चल रहा है, और जो 1 सितंबर 24 के बाद रीओपन होंगे खिमानी जी, उनके लिए नया रिजिम लागू होगा। उनके लिए 148 चेंज्ड है, 148A चेंज्ड है, 149 चेंज्ड है, 151 चेंज्ड है, और 152 में सनसेट क्लॉज। अब ये तो थी राजेश भाई बात रीओपनिंग की। जो सर्च असेसमेंट है उसमें उन्होंने जो ब्लॉक असेसमेंट डाला है उसका ब्लॉक पीरियड भी 6 ईयर प्लस जो सर्च ईयर है, सर्च पीरियड है। आप समझ लीजिए 60% टैक्स रेट लगेगा ब्लॉक असेसमेंट में, 60% टैक्स प्लस 50% पेनल्टी ऑफ टैक्स। जो नया ब्लॉक असेसमेंट है जिसका चैप्टर 14 भी है, उसके अंदर जो टैक्स रेट है राजेश भाई वो 60% है अनडिस्क्लोज इनकम पे, और उसकी पेनल्टी है 50% ऑफ टैक्स। हाँ, और उसके अंदर अनडिस्क्लोज इनकम में इतना कुछ आ जाएगा जो पहले कभी भी नहीं होता था ब्लॉक में, वो भी डाल दिया उन्होंने। किसी दिन जब आप हमारे को बुलाओगे अलग से वो चैप्टर, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया कि अपनी गलतियों को कवर करते हुए ड्यू रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, मुझे ऐसा पढ़ने में आया, मैंने जितना बार पढ़ा भी, कि वो अनडिस्क्लोज इनकम की परिभाषा जो उन्होंने अब ब्लॉक असेसमेंट में डाली है खिवानी जी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। सपोजिंगली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सर्च में नहीं मिला तो भी आप, और आपकी नॉलेज में बाद में वो चीज आ गई राजेश भाई, तो भी वो ब्लॉक असेसमेंट का पार्ट बन जाएगी, ऐसा नजर आ रहा है। तो जो 2 चेंजेस बहुत सीरियस हैं वो सर्च असेसमेंट और सर दोबारा बोलो, ये तो इतनी जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। अब जो भी है सर, इंक्रीमेंट
डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या रह गया? पढ़ लीजिए डेफिनेशन में सर। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे को बड़ी उन्होंने क्या किया धमीजा जी, वो अभिसार बिल्डवेल के सब जजमेंट को ओवररूल करने के लिए काबुल चावला वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उन्होंने कह दिया आई एग्री विद यू, लेकिन देयर हैज टू बी सम रैशनैलिटी। नहीं, वो कह दिया उन्होंने, वो कह रहे नहीं हमारे सर्च में अगर कोई मटेरियल नहीं भी मिला और हमारे एओ की कम्स टू नोटिस वर्ड लिखा है कि अगर उसकी नोटिस में बाद में कोई चीज आ गई तो भी वो असेसमेंट का पार्ट बन जाएगी, ब्लॉक असेसमेंट का। कम आप वर्ड यूज कर नोट करना चाहिए, जितना मैं समझ पाया, कम्स टू नोटिस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। हाँ तो वो तो उसको एब्सोल्यूट पावर से दी। हाँ तो सर अब मैं तो कह ही रहा हूं आपको, मेरे को इससे ज्यादा पीड़ा तो इस बात से हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए जो सेंट्रलाइज, इसका मतलब वो रोविंग इंक्वायरी, वो सर्च के बाद भी रोविंग इंक्वायरी करता रहेगा क्या? मैं दूसरी बात कह रहा हूं धमीजा जी, अभी आपकी आज वो जो असेसमेंट सेंट्रलाइज सर्कल करता है राजेश भाई, वो कितना ज्यादा आप शैबल्स में असेसी रहेगा, जिसकी सर्च 1 सितंबर 24 के बाद की होगी उसके लिए रिजिम लागू होगा नया, और जिसकी सर्च 1 सितंबर 24 से पहले की होगी, गोपाल जी बहुत सीरियस पॉइंट है, उसका रिजिम होगा जो अभी चल रहा है। दोनों में तालमेल कहीं नहीं है, और दोनों करने उसी अधिकारी को पड़ेंगे, वो सेंट्रल सर्कल को ही, जो जहां के सेंट्रलाइज होते हैं सर्च के। Why we still call it ease of doing business? Okay, yeah, this is good. मैं तो This is अपने बजट healthy. के, मैंने तो राजेश भाई अपना बजट पूरा डिस्कस कर लिया, देखो मेरा काम खत्म हुआ। कपिल जी या हेलो हाँ सर। कपिल जी, ये तो आपको तो समझ में आ जाएगा, इनको एसेसिंग ऑफिसर को समझ में आएगी क्या ये सारी मुझे चीजें? नहीं समझ में आ अरे रहा यार, सर, नहीं, मुझे कहाँ किसे समझ में आ गया हैं? हाँ, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने कहाँ ठीक से है। पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया सर। The नहीं, question एक is बात कि बता रहा हूं मैं, उसके समझ में आना फिर भी भी नहीं चाहिए अपन भाई। ऊपर से जा रही है। एओ नहीं, के सर, समझ ये में भी सारी आना अरे भी नहीं दीपक चाहिए। जी, इसकी जजमेंट आई ना, वो जजमेंट आई ना कि भाई सर्च के बाद का जो मटेरियल फिर उसकी पता है क्या नॉलेज में सर, आता है, मैं अपनी सेमिनार को उसको वो राजेश लेगा भाई, या नहीं लेगा। राजेश भाई मैं पता है अपने सेमिनार, अपने इस वक्तव्य को यही इसी बात पे एंड करूंगा कि जैसे आप एक चीज के लिए आज वीएसवी 2024 ला रहे हैं, 2020 लाए थे, जब ये सर्च असेसमेंट के राजेश भाई फिर दोबारा लिटिगेशन, एक जैसे क्या होता है, ये भी मुझे लगता है अब रेकरिंग फिनोमिना हो गया है, 2-4 साल बाद इन चीजों की वजह से जब दोबारा लिटिगेशन हो जाएगी तो फिर वीएसवी 3 आ सकता है, कोई रोक थोड़ी ना है भाई। आप कहोगे वीएसवी 3 आ जाएगा, वीएसवी 4 आ जाएगा, वीएसवी 5 आ जाएगा। अरे अभी तो VSV 1 वाले हाईकोर्ट में पड़े हैं सर। नहीं नहीं, ये ऐसी तो चल रहा है, तू डाल डाल में पात पात। हाँ यार राजेश भाई, तो ये रीअसेसमेंट जो चेंज हुआ है ना सर, ये आपको, जैसे मैंने सोचा कि ये चेंज तो इन्होंने, किसी ने मुझे दोस्त ने कहा गोयल साहब इससे लिटिगेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बढ़ेगा बढ़ेगा इससे तो। कि आप लिटिगेशन जितना करना करते जाओ, आपको हम VSVP लाते रहेंगे आपके लिए। इन सब बातों का राजेश भाई रैशनल ये है कि जैसे 148 के जैसे अब इन्होंने सारे सेक्शनों की लैंग्वेज चेंज कर दी, जब कोई भी नया केस 148 में आएगा तो जिस जज के पास, वो भी तो ह्यूमन आदमी है, अब सबसे बड़ा और जो लगाएगा, पता चल रहा है कि आपने 1 सितंबर 24 के बाद का केस खोला और सेक्शन लगा दिया पहले वाला। आएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑफिसर की समझ में नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, एओ की समझ में कभी आना ही नहीं चाहिए। मतलब आप क्यों उसको समझाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? और पता चला ब्लॉक असेसमेंट, नहीं ये बड़ा, ये हुआ है पहले ना सर, कि जब आप इतनी जल्दी रैपिड चेंजेस करते हैं और जब एक चीज को स्टेबल नहीं होने देते राजेश भाई, तो उसमें क्या होगा कि मेरा केस राइटफुली उस लॉ में असेस होना चाहिए, किस लॉ में होना चाहिए, मेरे पे कौन सी लैंग्वेज लग रही है, उसका क्या इंप्लीकेशन है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पता लगाना, जज के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए वो वाली लिटिगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जो आशीष अग्रवाल के बाद थी, चंद्रचूड़ साहब के पास केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा जो अभी 3 साल के लिए 148 रहा, जिसकी आयु सिर्फ 3 साल थी, वो 3 साल में विसर्जित हो गया, गणपति बप्पा मौर्य, 3 साल की आयु रही उसकी, चला गया, राधे राधे। अब वो नया आ गया राजेश भाई, वो तो अभी वो कितने दिन चलेगा, मतलब 3 साल में ही उसका यात्रा कंप्लीट हो गई। वो तो 6 महीने में मैडम ने पहले ही बोल दिया 6 महीने में चेंज कर ही रही हूँ। हाँ तो अब ठीक है, अब पता नहीं फिर अब हम कितने लॉ पढ़ेंगे सर, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा, और हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, समझाएंगे क्या? आप मुझे बुला लोगे, आप कहोगे कपिल भाई को बुला लो, मेरे को समझा देंगे, हमें समझा देंगे, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। कपिल भाई जब इन्होंने 148 रिवैम्प किया था तो भी यही कहा था, टू रिड्यूस लिटिगेशन। अब भी यही कह रहे हैं, अब तो ज्यादा ये कह रहे हैं पुरी साहब कि बार बार वो वर्ड इनके, जैसे चोपड़ा जी ने ना बार बार वही वर्ड रट्टा मारा हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
घंटा का एज ऑफ डूइंग बिजनेस है यार। चलिए सर। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो नंबर है नीचे नीचे जाता जा रहा है। सर मैंने वो दो जो चेंज नहीं लिए, जो छोटे छोटे चेंज हैं, कि जो 115, वो मुझे आता भी नहीं, ज्यादा कंप्लायंस में नहीं करता, आप लोग पढ़ लेंगे। 115 BAC में जो न्यू रिजीम है उसमें कुछ स्लैब का उन्होंने मैडम ने टिंकरिंग किया है AY 25-26 के लिए, वो आपको 115 BAC जो न्यू रिजीम है, और उसके अंदर जो लोग 115 BAC को खिमानी जी ऑप्ट करेंगे उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिए 50 से 75 सेक्शन 16 में, और सेक्शन 57 में बेनिफिट भी बढ़ा दिया है जो NPS वाला। तो 115 BAC की तरफ उनका कहना है कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं वो न्यू रिजीम को। मेरे को तो वो कंप्लायंस ज्यादा पता नहीं होता, आप लोग अपने आप देख लेंगे। बाकी मेरी राजेश भाई यहाँ पर ये जो पूरी हमारा 2.25 घंटे हो गए, मेरे को जितना मैं समराइज कर सकता था, जितना मेरे को समझ में आया, मैंने समझा दिया भाई साहब। बाकी आप लोग सर वो विवाद तो विश्वास रह गया सर। हाँ वो कपिल जी, बता देता हूँ, मैं बताता सॉरी। कोई बता दो ना सर। हाँ बिल्कुल कपिल जी, भाई साहब। आपने ये बोला कपिल जी कि मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया। मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि जितना आपने समझाया हमें समझ आ गया। क्या बात है सर, thank you। मैं आज टैक्स मेरे का आदमी नहीं आज हूँ। मेरे लिए 2 बोनांजा हुए सर, मैं एक आज ही मैं मिल गया, आप मैं मिल गए। मैं टैक्स का आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको सुना इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसे स्पीकर हैं और आप दिल से बोलते हैं। नहीं नहीं मुझे सर, सिर्फ आपको इसीलिए सुनना था। मैं आपके लिए हमेशा पुत्र तुल्य ही हूँ सर, और आज छोटा ही हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। मैं भी कई चीजें दिल से बोलता हूँ तो मुझे बहुत नहीं नहीं, ये मेरा आज सौभाग्य है कि चोपड़ा साहब अभी कहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बार-बार आया करो स्टडी सर्कल में, थोड़ा ज्ञान वर्धन करो। तो चोपड़ा साहब, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि बजट को कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए। बजट को इतने ज्यादा से ध्यान से वेट करते हैं अतुल जी, पास हो जाएगा फिर देखेंगे। अतुल जी, एक बजट मिनट को एक ध्यान मिनट एक मिनट एक मिनट प्लेजेंटरीज मैं 40 प्लेजेंटरीज में साल 2 मिनट में राजेश भाई का ड्यूटी खत्म कर देता हूँ, फिर मेरा काम ऐड होता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विवाद स्कीम 2024 इज कंटेनिंग चैप्टर 4 ऑफ द फाइनेंस बिल 2024। नाउ इसमें राजेश भाई 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक तो जो जिस डेट को आपकी अपील पेंडिंग होनी चाहिए और विवाद पेंडिंग होना चाहिए, उस डेट को, स्पेसिफाइड डेट को जो लिखा है वो 22 जुलाई है। वही बात यहाँ पर भी गोपाल जी, 22 जुलाई 2024। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफाइड डेट की परिभाषा जो स्कीम में दी हुई है, मींस 22 जुलाई 2024। दूसरी बात आप नोट कर लें सर, आप एलिजिबल डिक्लेरेंट कब बनेंगे विवाद से विवाद स्कीम में राजेश भाई, जब आपका केस पेंडिंग होगा अपील में। कहां पर हो सकता है आप नोट कर सकते हैं, जो एलिजिबल डिक्लेरेंट होगा, अगर किसी का केस अपील में पेंडिंग है, रिट पिटीशन में पेंडिंग है, SLP में पेंडिंग है, या रिवीजन पिटीशन में पेंडिंग है, वो चाहे एसएससी की भी अपील हो सकती है और डिपार्टमेंट की भी अपील हो सकती है। ठीक है। अब जिस डेट पे पेंडेंसी देखी जा रही है, वो कट ऑफ डेट कौन सी है चोपड़ा साहब, वो डेट है 31 जनवरी 2020। उन्होंने स्लैब दिया है कि अगर आपकी अपील 31 जनवरी 2020 से पहले की है या 31 जनवरी 2020 के बाद की है, अगर बाद की है तो उन्होंने कहा कि आपका जो टैक्स का निपटारा होगा, अगर आप टैक्स दे दोगे, जितना टैक्स अमाउंट है आपका, टैक्स, ब्याज, पेनल्टी सब माफ, अगर टैक्स दे दोगे। अगर आपकी अपील पहले की है, क्योंकि वो विवाद से विवाद, वो जो 31 जनवरी वाली डेट से पहले की है, तो आपको 110% देना है भाई, 110%। और पेनल्टी का 25। अभी मैं आता हूं सर, एक सेकंड, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए कि अगर हमारी अपील पेंडिंग है राजेश भाई आज की तारीख में, और हमारा केस पेंडिंग है आज की तारीख में, दैट इज 22 जुलाई 2024 को, स्पेसिफाइड डेट को, उसमें 2 बॉक्सेस बने हैं, 31 जनवरी 20 से पहले का केस अपील फाइल हुआ है या 31 जनवरी 20 के बाद का है। अगर 31 जनवरी 20 के बाद का है तो आपको टैक्स का अमाउंट देना खिमानी जी, और 31 जनवरी 20 से पहले का है तो 110% देना टैक्स का। अब रह गई बात जो चोपड़ा साहब बोल रहे हैं, पेनल्टी और फीस, जो फीस पेंडिंग है, फीस का डिस्प्यूट है, पेनल्टी का या ब्याज का है, उनके लिए अगर वही बात, अगर 31 जनवरी 20 से पहले की है राजेश भाई, तो आपको देना है 30% ऑफ डिस्प्यूटेड फीस, डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट। अगर 31 जनवरी 20 से पहले की पेनल्टी का केस है और इंटरेस्ट का या फीस का, तो आपको 30% देना है डिस्प्यूटेड अमाउंट का। और अगर आपका 31 जनवरी 20 के बाद का है तो आपको कितना देना है, 25%। तो राजेश भाई ये जो नई स्कीम बनी है, इसका पर्पज मुझे अब पता है, पहले कभी हम बात करते थे सेमिनार में, अभी भी करते थे चोपड़ा जी, हमारे बहुत सारे केसेस ना, अब कई बार क्या होता है, बाद में पता चलता है क्यों हो रहा है कि इतने सारे केस सीआईटी अपील में 1 लाख पेंडिंग हो गए, डिस्पोज क्यों नहीं हुए गोपाल जी? जी आप कुछ टैली कर पा रहे हैं राजेश भाई? टैली वेरी राइट करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, टैली हुआ सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अलग अलग डेट्स दो।
नहीं नहीं सर, उसका पर्पस ये था कि वो 3-4 साल अगर वो जो 1 लाख पेंडिंग होते, आप देखिए आप कितना रेवेन्यू, अब जो वो लोग बेचारे तरस हो गए, वो मरते खपते, बहुत लोग तो चले ही जाएंगे बीएसपी में। वो मैं नहीं कहेंगे चाहता ना भाई जाएंगे कि कपिल भाई को फीस नहीं देनी, विवाद से नहीं, विश्वास में जाओ। आप समझ रहे हैं मेरी भावना मजाक सर? कर रहा हूँ, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, आई नो, भावना मैं मेरी कह रहा हूँ वही सर, है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात सर कि जैसे जिनके हाँ। केस 3-4 साल तक सीआईटी अपील में डिसाइड नहीं हुए और उनका केस मेरिट पे राजेश भाई कवर्ड मैटर है, अब उनको कहीं ना कहीं इसमें जबरदस्ती ऑप्ट करना पड़ेगा ना, जो पहले भी हुआ था हमारे करना साथ। ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, दे हैव नो चॉइस। तो इसका मतलब हम सोवरेन जो आर्टिकल संवैधानिक परंपरा, सी आप कहते हो टैक्स कैन नॉट बी लीविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो आप जो विवाद से विवाद स्कीम आज लाए, जब 1 लाख केस पेंडिंग है, तो अभी लाने का क्या 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 इसका और रैशनल हुआ? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन। तो यही बात थी चोपड़ा साहब, मैं पहले भी सोच रहा था कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रिलीफ दे रहे हैं, पर है एक्सटॉर्शन, सीधी सी बात नहीं है। सर, और जिसका डिजर्विंग केस है, कवर्ड मैटर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एडिशंस हुए हैं और 3-3 4-4 साल तक जबरदस्ती उसका केस डिसाइड नहीं हो रहा है, और अब उसको ये वीएसवी ऑप्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे को तो गलत बात पे टैक्स देना पड़ रहा है ना, फिर मेरे को संवैधानिक जो मेरा संवैधानिक अधिकार है वो कहां रहा? और मैं ये समझ रहा हूँ कि अग्रवाल साहब जो है ना, हमारे गोपाल जी, ये बहुत खुश हो रहे हैं इसमें कि नहीं इनको सर। जो अगली बैलेंस शीट साइन करेंगे उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि वो क्लियर हो जाएंगी। सर मेरा धन्यवाद आप सब बड़ों को। मैं फॉर्मली इसी बात की वजह से, ये जैसे चोपड़ा जी, मुझे हमेशा लगता है कि रामचरितमानस की किसी चौपाई से या बांके बिहारी के किसी वर्ड्स के साथ, जैसे कभी ठाकुर जी सामने आ जाएं और पता ना चले कि साहब ठाकुर जी किस रूप में आ गए और गोविंद कहाँ आ गए, तो आज मेरे लिए गोपाल जी अग्रवाल और अमरजीत चोपड़ा जी किसी ठाकुर जी से क्या अरे बोलेंगे? मेरे मालिक, हमने मेरे आज भाई, आपसे जो सीखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, नहीं सर, मैं बहुत बलिहारी गुरु आपने, जिसने गोविंद दिया मिलाए, सर ये हम सबसे बड़ा आज आपको उस रूप में देख रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मेरे को कहाँ आता है सर, मैं तो आपका आशीर्वाद से काम अपना चला रहा हूँ नहीं नहीं, सर। चलिए। पर सर एक्चुअल फैक्ट ये है कि सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है कि आप सब लोग आ गए सर। चलिए, ओके राजेश भाई, राजेश जी, थैंक यू। ओके मेरा राजेश जी। मेरा मेरा सेमिनार एंड हो गया, अब हम कोई प्लेजेंटरी सर डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ मैं ठीक है, तो चोपड़ा राजेश सर जी, आप कुछ, मैं हाँ मैं लॉग आउट कर रहा हूँ राजेश जी। ओके सर, ओके ओके, सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। चोपड़ा थैंक यू साहब, सर। थैंक यू, आजा थैंक यू सर। गोपाल जी सर अब आप कुछ ऐड करना चाहें, शिवानी जी या हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं कुछ ऐड करना चाहें, नहीं, 5-10 मिनट में हम इसको कपिल जी वाइंड अप के वर्ड्स करेंगे। के बाद कुछ ऐड करने लायक रह नहीं जाता। नहीं सर, फिर भी इट इज एब्सोल्युटली कंप्लीट। हाँ, माय सजेशन इज कि जहाँ पे कभी डिटेलिंग काफी रिक्वायर्ड है, वहाँ उसके लिए राजेश जी आप इनको फिर एक बार, कपिल जी को विनम्र स्वागत एक बार करिए। नहीं सर, अब इनको हर महीने कम से कम 2 बार बुलाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, नहीं तो पूरा नहीं होगा, इस बार का बजट पूरा नहीं होगा, नहीं होगा सर। बिल पूरा नहीं होगा। और ये बहुत थॉरली समझाते हैं, तो चुपचाप सब लोग सुन लेते हैं कि भैया ये इतनी समझ की बात कोई कोई बता पाता है नहीं सर, इतनी आपका डिटेल आशीर्वाद है। में। ये दिस जैन इज साहब, ग्रेट ऑफ यू, ग्रेट ऑफ यू। राजेश जैन साहब ने आज कुछ भी वर्ड ऐड नहीं किया। रिक्वेस्ट है हाँ, सर, जैन साहब अपनी हाजिरी लगाओ जरा। हमारे जैन साहब भी बड़े प्रबुद्ध हैं सर। जी सर। आवाज नहीं आ रही जैन साहब, जैन जैन साहब साहब आपकी आवाज आवाज नहीं, नहीं आ रही सर। पीछे पत्नी खड़ी है सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही जैन साहब। म्यूट तो नहीं है, म्यूट तो नहीं है। गोपाल जी आप कुछ ऐड करना चाहो, गोपाल जी? नहीं नहीं, मैं तो बस कपिल जी को आज सच में बहुत दिनों बाद वर्चुअल दर्शन हुए हैं, एंड ही इज वेरी नियर टू मी, एंड मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना हमारा कपिल जी के साथ है। और कपिल जी ने, आप ये देखो कि 12:30 बजे आई थिंक बजट खत्म हुआ है, 12:40 पे खत्म हुआ होगा। उसके बाद कपिल जी एंगेज थे जस्टिस साहब के साथ, और उतने इतने कम टाइम में इतना सब चीजों को समराइज करना, ये केवल दैवी कृपा है, बिलीव में। बड़ा मुश्किल था, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था ये कि ये राधा रानी की कृपा है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप इतने अच्छी तरीके से। बिल्कुल तो सही बात रियली, है सर। है ना, मतलब आप ये देखो, इतनी एंगेजमेंट्स के बाद और इतना सब इधर उधर ऑक्यूपाई होने के बाद, ये इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी और राधा रानी की कृपा, यही दो वही है चीजें हैं। जो आपने पहले बोला, मेरी मेमोरी का कोई खेल नहीं है इसमें, सारा क्रेडिट, सारा सब कुछ ठाकुर जी के और बाकी किशोरी जी के चरणों में है। बस उन्हीं की कृपा से अपना कपिल जी जो है एक ब्लेसिंग से हम लोगों के लिए, सच पूछो तो। वो जो राजेश भाई लाइन है ना, श्यामाजू मेरी नैया उस पार लगा देना,
हमारे लिए Yes, तो yes. राधा रानी के बिना हम जीरो है ही, जीरो। राधा रानी के बिना कुछ नहीं है सर हम। बस बिल्कुल बिल्कुल। So it's said रमैया जी, आप कुछ ऐड basically करना चाहते divine. हैं? पूरी साहब, कपिल भाई, राधे रानी की कृपा तो है, मगर उसकी कृपा से आपको जो मेहनत करते हो आप, और उस मेहनत को ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करके यू स्टडी इट, एनालाइज इट एंड देन गिव इट टू अस। इट्स ए आप ग्रेट सब लोग सर, एक आप सब लोग वो बात भी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ पूरी साहब, आप सब लोग वो नोट कर लें कि ये जो इंस्ट्रक्शन आएगी ना, इसका भी हम बेनिफिट बहुत अभी अभी आजकल में आ जाएगी, जिसमें इन्होंने मॉनेटरी थ्रेशोल्ड बढ़ाया है ना, 60 लाख जी। किया है, 2 करोड़ 5 करोड़ किया है, इसको हम पेंडिंग अपील्स के लिए भी ले सकते होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। Yes, yes. जी सर, जी सर, जी सर। तो अल्टीमेटली सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नाउ रिक्वेस्ट दुआ साहब, आपने भी कुछ ऐड नहीं किया, आप भी सर नहीं कंक्लूडिंग हम मार्क तो दो शुरू और ऐड किया। नोट मैं ऑफ तो थैंक्स। जो गोपाल जी ने कहा मैं तो उनके साथ सहमत हूँ, जैसा उन्होंने कहा मेरा भी मन में वही ख्याल था। बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जैन साहब आपका स्पीकर कपिल जी ऑन हो गया तो धन्यवाद सर। आपके जैन शब्द। साहब, खिवानी सुबह साहब आप भी 4 बजे कंक्लूडिंग, खिवानी साहब मैं कंक्लूडिंग कपिल जी रिमार्क्स को और नोट बहुत ऑफ थैंक्स। जबरदस्त धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतने सरल शब्दों में और इतने विस्तार तरीके से जो दिमाग में बैठ जाए, जो अनपढ़ हो उसको भी समझ में आ जाए, ये ऐसे चार्टर्ड अकाउंट्स को पढ़ा देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, भगवान सर आपको मुझे शक्ति खुद दे। को भी तो समझाना है, खुद को भी तो समझाना है, कैसे समझाऊं बताओ? वो कहते हैं दे और दिल उनको जो ना मुझको जुबान, और भगवान आपको जुबान और दे, आप बहुत अच्छा समझा सकें। थैंक यू सर। हमारी दुआ आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू। देन All हार the best, सर, एक sir, all the राजेश भाई best. वो फिर एक बार दोबारा जी, लिखिए, जी। देन हार कोई और है, भेज रहे हो दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताको नीचे नैन। थैंक यू। थैंक यू जी, जी सर, कपिल भाई जी अनमैचेबल सर, बहुत बहुत Sir, धन्यवाद। your modesty. This is your modesty. राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे सर।